it is basically a system. It is collectively called respiratory tract. ठीक है जी. अब ये है 5 बेसिक फंक्शन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम परफॉर्म करता है. उसमें से हैं वी हैव गैस एक्सचेंज सिस्टम जो ऑक्सीजन और कार्बन कैविटी, साउंड प्रोडक्शन जो कि पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट विच इज लेरिंग्स, वो फंक्शन परफॉर्म करता है. ऑल्फैक्टरी असिस्टेंस, सेंस ऑफ स्मेल जो कि नेजल कैविटीज के साथ या ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा के साथ एसोसिएटेड है. एंड प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन किससे? फ्रॉम डस्ट, फ्रॉम माइक्रोब्स, entering body through mucus production, cilia and cuffing. ये सारे के सारे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो परफॉर्म करता है. अच्छा, ये तो एक जनरल डेफिनेशन थी. आज की क्लास जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे. इसमें स्क्रीन हाँ जी ठीक है. हाँ आ जाए, वो आया नहीं. ठीक, सॉरी. In today's class, we will discuss a brief discussion of the development of this system, gross features of the respiratory system, and then histology of the respiratory system. When we talk about development of the respiratory system, basically during 4th week of development, respiratory diverticulum or lung bud appears as an outgrowth from the ventral wall of the foregut. अगर आप ये पिक्चर देखें तो आपको नजर आएगा, this is the gut, which is divided into foregut, midgut and hindgut. तो foregut का पोर्शन जो है हमारा, उसमें एक आउटग्रोथ होती है, एक रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम या लंग बड जिसे हम कहते हैं, वो अपीयर होता है ड्यूरिंग 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट. इनिशियली is in open communication with the foregut, with the open communication with the foregut, and when this diverticulum expands caudally, yani jab iski growth shuru hoti hai, then 2 longitudinal ridges which are called tracheo-esophageal ridges, they basically appears and they separated from the foregut. कुछ इस तरह से. हमारी जो डायग्राम बी है उसमें आप देखेंगे कि these are esophageotracheal ridges जो कि हमें नजर आ रहे हैं. अब क्या होता है कि when these ridges fuse, they will form a tracheoesophageal septum. ठीक है. And then the foregut is divided into a dorsal or posterior portion which is esophagus, and an anterior portion which is called trachea, and we have below this trachea we have these lung buds. अब रेस्पिरेटरी प्राइमोडियम अब ये हमारा जो है ये बन गया. इट मेंटेन इट्स कम्युनिकेशन विद द फेरिंग्स थ्रू द लेरिंजियल ऑरिफिस. अब अगर आप ये देखो तो दिस इज द वेंट्रल पोर्शन ऑफ द फेरिंग्स जिसको हम देख रहे हैं. अब इसकी जो है वो समझ लें कि आप बैक साइड पे ये सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है वो हमारा प्रेजेंट है विद ओपन कम्युनिकेशन. और ओपन कम्युनिकेशन किससे हो रहा है? थ्रू लेरिंजियल ऑरिफिस जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप जो हमारा डेवलपमेंट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है वो जरूरी और हेल्प आउट करता है. देन वी हैव डेवलपमेंट ऑफ लेरिंग्स एंड ट्रेकिया के वो कैसे होती है. The upper part of the developing tube जो हमने कहा, it becomes the larynx, whereas the lower part becomes the trachea. यानी इस ट्यूब में upper part become the larynx and lower part become the trachea. Now the epithelial lining of the larynx, of trachea, of bronchi, and the epithelium of alveoli, it all develop from endodermal lining of the floor of the pharynx. ठीक है. तो बिकॉज हमारा फोरगट जो है वो हमारा गट जो है दैट इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन, तो वहीं से हमारी that comes from endoderm. ठीक है. अब just behind the developing tongue, अब यहाँ पे अगेन वही हमारा वेंट्रल व्यू है फेरिंग्स का. तो just behind the developing tongue ये आपको lingual swellings नजर आ रही हैं. There is a small opening that persists that will become the permanent opening to the larynx, जो आपको यहाँ पे laryngeal orifice नजर आ रहा है. अब क्या है कि the cartilaginous muscles they originate from mesenchyme of the 4th and 6th pharyngeal arch. ठीक है जी. 4th and 6th pharyngeal arches जो आपको नजर आ रही हैं, this yellow one is the fourth arch and this 6th one is blue one is the 6th arch.
Sorry. The cartilaginous muscles originate from mesenchyme of the 4th and 6th pharyngeal arch. अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब हमने लैरिंक्स किया था हमारे हेड एंड नेक पोर्शन के साथ, तो लैरिंक्स की बेसिकली नर्व सप्लाई में हमने किया था कि अपर पोर्शन ऑफ द लैरिंक्स इज सप्लाइड बाय द सुपीरियर लैरिंजियल नर्व एंड लोअर पोर्शन जो है वो हमारा रिकरेंट लैरिंजियल नर्व जो है वो उसको जो है वो इनोवेट करती है। तो जो 4th pharyngeal arch है उसकी बेसिकली उसके साथ एसोसिएटेड नर्व इज सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, एंड 6th pharyngeal arch के साथ एसोसिएटेड वी हैव रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। तो इनका ओरिजिन जो है वो लैरिंग्स का बेसिकली वो आपको बताता है कि उसके साथ एसोसिएटेड नर्व्स कौन सी हैं या उस रीजन की जो है वो नर्व सप्लाई क्या है। नाउ द ट्यूब डिवाइड डिस्टली इनटू राइट एंड लेफ्ट लंग बड्स। नाउ व्हाट हैपन नेक्स्ट इज कि ईच लंग बड बेसिकली कंसिस्ट ऑफ एंडोडर्मल ट्यूब। ऑब्वियसली फोगट से आया है तो एंडोडर्मल ट्यूब है दैट इज सराउंडेड बाय मेसोडर्म। अब मेसोडर्म में वी हैव स्प्लैंक्निक या जिसको हम विसरल मेसोडर्म कहते हैं, एंड वी हैव सोमैटिक या नियर टू द स्किन जो होती है उसको हम कहते हैं सोमैटिक मेसोडर्म ऑफ एंडोडर्मल ट्यूब, and it is surrounded by splanchnic mesoderm. Now each bud grow laterally and project into the pleural part of the embryonic coelom, and at the beginning of 5th week each of these lung bud they basically enlarge to form right and left main bronchi, जो आपको इस पिक्चर ए में नजर आ रहा है। Now each main bronchus then divides repeatedly in a dichotomous manner until the terminal bronchiole and alveoli are formed. ठीक है जी, इस स्टेज पे जो है वो डायकोटोमस मैनर के हर ब्रांच जो है वो फर्दर आगे 2 ब्रांचेस देगी, तो उसको हम कहते हैं कि डायकोटोमस मैनर में जो है वो इसकी डिवीजन होती है और इसमें मल्टीपल डिविजन होती हैं। नाउ द डिवीजन कंटिन्यूज, सारी डिविजन्स जो हैं ये हमारी चलती रहती हैं। देन अब हमारी जो है वो प्लूरल मेम्ब्रेन्स जो हैं जो कि जिन्होंने लंग को एनवेलप किया है जो उसको प्रोटेक्ट कर रही हैं वो कैसे आएंगी। अब वो क्या है कि लंग बर्ड्स बेसिकली पंच इनटू विसरल और स्प्लैंक्निक मेसोडर्म, जिसके बारे में हमने बात की कि लंग बर्ड्स को जो है वो जो क्लोजली वो करेंगे इन्वेस्ट वो हमारे स्प्लैंक्निक मेसोडर्म होगा। तो स्प्लैंक्निक मेसोडर्म दैट कवर्स आउटसाइड ऑफ द लंग इट डेवलप इनटू विसरल प्लूरा, ठीक है जी। और द सोमैटिक मेसोडर्म जो है जो हमारा outer portion था somatic mesoderm that cover the body wall from inside, it becomes the parietal pleura, and the space between these 2 layers is called the pleural cavity, or this pleural cavity is formed। ठीक है जी। अब आगे चलें हम, तो हमारी होती हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मैच्योरेशन ऑफ लंग। अगेन ये सारी की सारी जो स्टेजेस होती हैं इनके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इसमें ये होता है कि इनके जो टाइमलाइन होती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्जैक्टली तो नहीं, बट इसमें अगर आप देखोगे तो एम्ब्रियोनिक पीरियड इज फ्रॉम 3 to 7 वीक्स ऑफ डेवलपमेंट। तो 7 to 17, 17 to 27 एंड 27 to 36, मतलब ये आसान तरीका है इसको याद रखने का। हालांकि टू बी प्रिसाइज अगर बहुत सारी किताबों को देखोगे तो उसमें 1-2 वीक्स की वेरिएशन मिलती है, बट आपको एक अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होगा इन स्टेजेस का और इनके जो है वो सीक्वेंस का, तो आप इसको टाइमलाइन के हिसाब से जो है वो देख सकते हैं। So we have embryonic period which is 3 to 7 weeks, जिसके बारे में हमने बात की कि जिसमें लंग बड फॉर्मेशन होगी, ट्रेकिया एंड लेरेंजियल फॉर्मेशन होगी, ब्रोंकाई की डिफरेंशिएशन जो है वो स्टार्ट होगी। तो यानी ये सारे के सारे प्रोसेसेस जो हैं जिसको हम ऑर्गेनोजेनेसिस का फेज भी कहते हैं, ये होगा हमारा एम्ब्रियोनिक पीरियड में और ये हमारा 7th वीक ऑफ डेवलपमेंट तक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। Then comes the fetal period, और fetal period में जो है वो हमारे पास जो stages होती हैं, these are pseudoglandular stage, we have canalicular stage, we have saccular stage, और फिर last stage होती है कि जो birth and postnatal growth तक चलती है, which is called the alveolar stage। अब आप अगर देखो तो ये जो हमारी जितनी भी स्टेजेस हैं अगर इनके नाम आपके जहन में हो तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इन स्टेजेस में किन स्ट्रक्चर्स की जो है वो डेवलपमेंट हो रही है। इन जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज सूडोग्लैंडुलर स्टेज, ठीक है। अब सूडोग्लैंडुलर स्टेज लास्ट फ्रॉम 7 weeks to 17 weeks ऑफ डेवलपमेंट,
and it help in formation of conducting airways. अब conducting airways हम किनको कहते हैं आगे obviously हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, but conducting airways वो पोर्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है कि जो आपका एयर को कंडक्ट करता है और उसको पहुंचाता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, यानी उनको आगे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स तक लेके जाना है, बट टर्मिनल ब्रोंक्यूल को हम कहेंगे कि वहां तक का जितना पोर्शन है दैट इज कंडक्टिंग, और फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास रेस्पिरेटरी पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, यानी जिसमें जो है वो फंक्शन जो है वो एक्सचेंज का स्टार्ट होता है। तो कंडक्टिंग पोर्शन जो है दैट इज कंप्लीटेड इन दिस सूडोग्लैंडुलर स्टेज, यानी टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक जो है वो हमारी जितनी भी डेवलपमेंट है वो हो जाएगी हमारी इस 7 to 17 वीक्स के पीरियड में। देन वी हैव इमेच्योर न्यूरल नेटवर्क जो है उसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, और अपीयरेंस ऑफ टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। ठीक है, अब टाइप 2 न्यूमोसाइट्स जो हैं वो अपीयर होना शुरू होंगे, बट अभी उनकी जो है वो फंक्शनली वो वेल डेवलप नहीं होंगे। टाइप 2 न्यूमोसाइट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट बात जो उनके साथ एसोसिएटेड है कि वो सर्फेक्टेंट रिलीज करते हैं, और सबको पता है कि सर्फेक्टेंट जो है वो उसका फंक्शन क्या होता है इन सारी की सारी स्टेजेस में। Then second stage is the canalicular stage. अब canalicular stage में जो है which is from 17 to 27th week. अब canalicular stage में जो है वो lung periphery formation होती है, यानी जो हमारा peripheral portion है वो होगा, vascularization जो है वो increase हो जाएगी। अब वहाँ type 2 pneumocytes जो हैं वो appear होना शुरू हुए, यहाँ पे type 1 pneumocytes बनना शुरू हो जाएंगे। अब type 1, type 2 obviously इनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, but type 1 pneumocytes जो हैं these are associated with blood air barrier, and type 2 pneumocytes जो हैं these are associated with surfactant production। तो उनको आपको अगर ऑब्वियसली ये सारे के सारे जितने पॉइंट्स मैं बताऊंगी ये सारे के सारे आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि जैसे टाइप 2 न्यूमोसाइट्स दे अपीयर इन द सूडोग्लैंडुलर स्टेज, और टाइप 1 जो है न्यूमोसाइट दे स्टार्ट अपीयरिंग इन द कैनालिकुलर स्टेज। और उसके अलावा जो है वो अगेन फॉर्मेशन ऑफ एयर ब्लड इंटरफेस जो है वो डेवलप हो जाएगा इन द कैनालिकुलर स्टेज, और ऑब्वियसली जब ये इंटरफेस तभी हो सकता है जब हमारे पास टाइप 1 न्यूमोसाइट्स होंगे। देन इज द सेक्युलर स्टेज। अब सेक्युलर स्टेज में जो है वो क्या होता है कि सेक्यूल फॉर्मेशन, ठीक है, यानी एल्वेलर सेक्यूल्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, और ये स्टेज लास्ट करेगी 27 वीक से 36 वीक्स तक। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो है वो इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि इसमें सर्फेक्टेंट डिटेक्टेबल होगा आपके एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर, ठीक है। अब वहां पे सर्फेक्टेंट क्यों आया, बिकॉज हमारे पास टाइप 2 न्यूमोसाइट्स की फॉर्मेशन जो है वो पहले हो चुकी है सूडोग्लैंडुलर में। तो यहाँ पे याद रखने की सिर्फ यही बातें हैं, 3 बातें जो आपने याद रखनी है। एक तो ये पूरी की पूरी टाइमलाइन याद रखनी है कि वी हैव 3 to 7 एम्ब्रियोनिक पीरियड, वी हैव 7 to 17 सूडोग्लैंडुलर स्टेज, वी हैव 17 to 27 कैनालिकुलर स्टेज, 27 to 36 इज द सेक्युलर स्टेज। अब इसमें जो है वो टाइप 2 न्यूमोसाइट कब अपीयर हो रहे हैं, टाइप 1 न्यूमोसाइट ब्लड एयर बैरियर कब अपीयर हो रहा है, और इसमें जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर सर्फेक्टेंट जो है वो आपको डिटेक्टेबल होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमारे इन स्टेजेस के साथ एसोसिएटेड है, जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। Then is the last stage which is the alveolar stage, और alveolar stage जो है that lasts from 36 week onwards to up to 7 to 10 years of age, और इसमें जो है वो alveoli मैच्योर होते हैं और प्रोलिफरेशन होती है, एक्सपेंशन ऑफ कैपिलरीज होता है, नर्व एंड गैस एक्सचेंज एरियाज जो हैं वो डिफाइन होते हैं। तो बेसिकली हम जो लास्ट 3 स्टेजेस हैं विच इज कैनालिकुलर, सेक्युलर और एल्वेलर, इनको कहते हैं डिफरेंशिएशन की स्टेजेस, और हमारी जो पहले 2 स्टेजेस हैं विच इज एम्ब्रियोनिक एंड सूडोग्लैंडुलर, तो उनको हम कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी ऑर्गन की फॉर्मेशन हो रही है और यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रही है। तो अगेन ये बात जो है वो
आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको पता हो कि डिफरेंशिएशन की स्टेजेस कौन। समराइज सा जो है वो है डेवलपमेंट का, 4th वीक में हमारे पास लंग बड अपीयर हुआ, हमारे पास ट्रेकियोइसोफेजियल ग्रूव्स बने, देन सेप्टम बना, सेपरेशन हुई, लंग बड ने जो है वो इंफीरियरली ग्रो करना शुरू किया, हमारे पास जो है वो प्ल्यूरा आना शुरू हुआ, प्ल्यूरा के बाद जो है वो हमारे पास ये कंप्लीट लंग की जो है वो फॉर्मेशन 8 वीक्स में जो है वो इतनी कंप्लीट हुई। दिस इज एम्ब्रियोनिक पीरियड की जो हम बात करते हैं। अब इसके साथ एसोसिएटेड कॉन्जेनाइटल एनोमलीज, अगेन मैं बार बार कह रही हूँ कि हम एम्ब्रियोलॉजी को जितना आपके लिए रेलेवेंट बातें थी मैं उतना कर रही हूँ, बहुत डिटेल में जो है वो इसको डिस्कस नहीं कर रही। तो कॉन्जेनाइटल एनोमलीज में भी जो है जो इम्पोर्टेंट है डेवलपमेंट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ एसोसिएटेड, हम सिर्फ उनको देख रहे हैं। अब इसमें जो है वो आप देखोगे कि दिस इज द ट्रेकिया और उसके बाद ये ब्रोंकाई हैं हमारे पास। अब हमारा जो पोस्टीरियर पोर्शन था दैट इज इसोफेगस, यानी हमें पता है कि गट से जो है वो उससे सेपरेट होना है थ्रू ट्रेकियोइसोफेजियल सेप्टम, और एक कम्युनिकेशन जो है वो हमारा ऑब्वियसली वो ऊपर वाले पोर्शन में जो है वो लेरिंजियल ओरिफिस के जरिए था। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट एब्नॉर्मेलिटी जो 90% ऑफ द केसेस में होती है कि अपर इसोफेजियल पोर्शन जो है दैट एंड एज ब्लाइंड पाउच, और लोअर सेगमेंट जो है दैट इज कनेक्टेड विद द ट्रेकिया, और इसको जो है वो एनॉर्मली को कहेंगे हम कि दिस इज ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला, और जो फॉर्मेशन हो रही है और ये प्रेजेंट होती है, कॉमनली ये प्रेजेंट होती है इन 90% ऑफ द केसेस। अब कुछ केसेस में क्या होता है कि हमारा जो फोरगट है वो कंप्लीटली डिटैच हो जाता है फ्रॉम थ्रू दिस ट्रेकियोइसोफेजियल सेप्टम, और अगेन वो प्रॉक्सिमल और डिस्टल पोर्शन में जो है वो डिवाइड हो जाता है। अगेन दिस एनोमली, ये एनोमली जो है इसको हम कहेंगे आइसोलेटेड इसोफेजियल एट्रीजिया, और ये जो है ये प्रेजेंट होती है 4% ऑफ द केसेस में। देन वी हैव दिस कम्युनिकेशन ऑफ द इसोफेगस विद ट्रेकिया हो जाता है और ये फिस्टुला फॉर्मेशन हो जाती है। अगेन दिस इज आल्सो प्रेजेंट इन 4% ऑफ द पॉपुलेशन। अब इसमें जो है वो ये डिफरेंट चीजें होती हैं जो कि बहुत रेयर होती हैं कि प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ द इसोफेगस जो है वो एक फिस्टुला इसके साथ जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली सर्वाइवल जो है वो दैट इज नॉट पॉसिबल, और इसमें भी जो है वो क्या होता है कि इसोफेगस का जो है वो अपर एंड लोअर पार्ट दोनों जो है दे आर इन कांटेक्ट विद द ट्रेकिया, और ये भी अगेन फिस्टुला फॉर्मेशन हो जाती है, बट ये एनोमलीज जो है रेयर है। तो मोस्ट कॉमन इज बेसिकली ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला जो कि लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस जो है वो उसके साथ इन कम्युनिकेशन होता है। आप आगे चलें तो हम करते हैं ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ द लंग, जिसमें हम बहुत थोड़ा पोर्शन मेरे ख्याल है कि सारी चीजों का लेके चलेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स हैं, हमारा ब्रोंकियल ट्री है, हम उसके बारे में जो है वो डिटेल से बात करेंगे। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो है वो मोस्ट कॉमन डिवीजन जो होती है, हम ग्रॉसली जिसको ग्रॉस डिवीजन कहेंगे, वो होती है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है जी, इसको हम कहेंगे दिस इज एनाटॉमिकल डिवीजन, या इसको कहेंगे कि हम इसको स्ट्रक्चर के लिहाज से कैसे डिवाइड करते हैं। लेरिंग्स बेसिकली इज द पॉइंट कि अबव द लेरिंग्स इज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जैसे आप इन्फेक्शंस की बात करते हो तो दिस इज अपर रेस्पिरेटरी एंड दिस इज लोअर रेस्पिरेटरी। तो हमारा जो मार्क है जो हमें इन दोनों पोर्शंस को जो है वो डिफरेंशिएट करता है वो है लेरिंग्स। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर हम देखें तो वी हैव नेजल कैविटी एंड वी हैव फेरिंग्स। ठीक है, नेजल कैविटी और उसके अलावा जो है वो पैरानेजल साइनसेस, दे आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम। बेसिकली उसके साथ एसोसिएट कर देते हैं हम इनको, क्योंकि वो सारी की सारी ओपनिंग्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं हमारी नेजल कैविटी के अंदर। नेजल कैविटी के बारे में हमने हेड एंड नेक पोर्शन में जो है वो डिटेल में बात की थी, इसी तरह से जो है वो हमने फेरिंग्स के बारे में भी बात की थी। देन comes a lower respiratory tract जिसके अंदर हमारा जो है वो laryngeal पोर्शन आ जाता है। देन वी हैव ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद जो है वो हमारे ब्रोंकाई, और पूरे का पूरा हमारा लंग टिश्यू जो है वो सारा का सारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर आ जाता है। अच्छा, एक हो गई क्लासिफिकेशन अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी की। देन वी हैव
इसकी जो है ना वो फंक्शनल क्लासिफिकेशन की फंक्शन जो परफॉर्म करता है लंग, उसके लिहाज से जो है वो क्या है। तो उसमें जो है वो हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को या हम डिवाइड कर देते हैं इनटू टू पोर्शन। वी हैव अ कंडक्टिंग पोर्शन and we have a respiratory portion. तो conducting portion की बात करें तो we have nasal cavities, अब फिर उसके बाद pharynx, we have larynx, trachea, we have principal bronchi, then lobar bronchi, segmental bronchi, bronchioles, and up to the level of terminal bronchioles. तो terminal bronchioles again मैंने initially भी यही आपसे बात की थी कि वहां तक जितना पोर्शन आता है जो कंडक्ट करता है एयर को, वो है कंडक्टिंग पोर्शन। और उसने क्या करना है, उसने बेसिकली कंडीशनिंग करनी है एयर की, एडजस्टमेंट करनी है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्यूरिफिकेशन करनी है, डस्ट रिमूवल करना है। तो ये सारा का सारा पोर्शन है हमारे कंडक्टिंग पोर्शन का। देन जहां गैस एक्सचेंज होगा, जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे लंग्स का, जो प्राइमरी फंक्शन है लंग्स का, वो होगा हमारा रेस्पिरेटरी पोर्शन। और रेस्पिरेटरी पोर्शन की जो है वो डिवीजन अगर हम देखें तो वी हैव रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, वी हैव एल्वुलर डक्ट्स एंड वी हैव एल्वुलाई। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे जो है वो गैस एक्सचेंज होगा और जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उसके अगेंस्ट जो है वो हमारे इसको क्लियर करने में जो है ये हेल्प करेगा। नाउ अब ग्रॉस एनाटॉमी में हम स्टार्ट करते हैं विद ट्रेकिया। अब ट्रेकिया जो है वो दैट इज हम आम जबान में कहते हैं कि दिस इज अ विंड पाइप। इट इज अ ट्यूब विच इज 4 inches लॉन्ग एंड इट इज लेस देन an inch in diameter. ट्रेकिया जो है वो दैट कंप्राइजेस ऑफ द कार्टिलेजिनस रिंग्स। इसके अंदर होते हैं 10 to 12 रिंग्स होते हैं जो कि सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग कहते हैं, जो कि डेफिशिएंट होते हैं पोस्टीरियरली, यानी दिस इज द एंटीरियर पोर्शन। तो एंटीरियरली जो है वो कंप्लीट होते हैं, पोस्टीरियरली जो है वो इनकम्प्लीट होते हैं। और इनकम्प्लीट क्यों होते हैं कि वहां पे जो है वो मसल होता है दैट इज कॉल्ड ट्रेकियलिस मसल। तो वो ट्रेकियलिस मसल जो है और उसके जस्ट बिहाइंड जो है वी हैव इसोफेगस। तो इसोफेगस की जो डायलिटेशन होती है बेसिकली, जैसे हम डेग्लूटेशन प्रोसेस है या हम कुछ भी खाना खा रहे हैं तो बेसिकली उसकी एक्सपेंशन के लिए जो है वहां पे एक सॉफ्ट पार्ट दिया गया है। अदरवाइज ये कार्टिलेज जो है इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है कि ये पेटेंसी ऑफ द ट्रेकिया के लिए जो है वो जरूरी है। तो पोस्टीरियरली वी हैव ट्रेकियालिस मसल जो कि हमारे इसोफेगस को जो है वो उसकी सारी की सारी जो डायलिटेशंस हैं उनको कॉम्पनसेट करने के लिए जो है वो वहां पे प्रेजेंट है। Then is a very important portion which is called the carena. Carena क्या है कि it represents the inferior termination of the trachea into right and left main bronchus. तो इस termination को जो है, इस point को जो है वो हम carena कहेंगे। और carena के साथ associated जो MCQ point of view से पूछा जाता है उसका basically level पूछा जाता है आपसे। तो it is present at the level of sternal angle। और अगर हम वर्टिब्रल लेवल देखेंगे तो उसका वर्टिब्रल लेवल है बेसिकली T4 एंड T5, यानी 4th thoracic और 5th thoracic वर्टिब्रा जो है वो वहां पे जो है ये प्रेजेंट होता है कैरेना। अगेन इसका जो है वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि कफ रिफ्लेक्स में जो है वो ये काफी यहाँ पे जो है वो उसके रिसेप्टर्स होते हैं चीजों के और वो कफ रिफ्लेक्स में हेल्प करता है। देन अगेन वो भी एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। Then principal bronchi are formed by the division of trachea and enters the lung at hilus. अब ये principal bronchi जो हैं, इसमें important बात जो मैंने आपके पास पेपर्स में बहुत सारे MCQs देखे हैं, सिनेरियो बेस्ड भी, जिसमें जो है वो एस्पायरेशन के साथ इम्पैक्शन के साथ बच्चों को लेके बहुत सारे सिनेरियोज बने होते हैं, या फिर जो है वो कोई भी चीज अगर इम्पैक्ट होती है रेस्पिरेटरी पैसेज में तो वो कहाँ पास ऑन होगी, कुछ इस तरीके से सिनेरियोज बने होते हैं। तो वो कहाँ इम्पैक्ट होगी, राइट ब्रोंकस में। व्हाई? बिकॉज राइट ब्रोंकस इज वाइडर, इट इज शॉर्टर एंड इट इज स्ट्रेटर देन द लेफ्ट। तो यहाँ पे जो है वो इम्पैक्शन, किसी भी चीज के इम्पैक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगेन ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने इसके काफी सारे आपके पास पेपर्स में से जो है वो MCQs देखे हैं। अब
ट्रेकिया और प्रिंसिपल ब्रोंकाई के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है, हमारी थोरेसिक कैविटी को जो लाइन कर रही है या प्रोटेक्ट कर रही हैं चीजें, लंग्स को जो प्रोटेक्ट कर रहा है, दैट इज प्लूरा। तो हम पहले प्लूरा के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो इनसाइड जाएंगे और फिर हम लंग के बारे में जो है वो बात करेंगे। नाउ प्लूरा क्या है? प्लूरा इज बेसिकली अ क्लोज्ड सीरियस सैक। अगेन क्लिनिकली जो है वो प्लूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसके जो है वो क्लिनिकल्स भी साथ साथ डिस्कस करेंगे, तो आप देखोगे कि ये बहुत, इसमें हर चीज इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग प्लूरा। It is a closed serous sac and surrounds the lung, invaginated from its medial side by root of the lung. टू लेयर्स हैं। वी हैव पैराइटल लेयर, जिसका जो है वो जो कहाँ से आई है, जो सोमैटिक जो सॉरी स्प्लैंक्निक मेसोडर्म से आया है, दैट लाइन्स द थोरेसिक कैविटी। और विसरल प्लूरा है जो क्लोजली इन्वेस्ट करती है लंग सब्सटेंस को, एंड इट कम्स फ्रॉम सोमैटिक मेसोडर्म। अगेन आप साथ साथ उन चीजों को करोगे तो आपको एम्ब्रियोलॉजी भी जहन में रहेगी। तो विसरल प्लूरा सराउंड्स द लंग separated by pleural cavity, यानी parietal and visceral जो हैं, they both are separated by a cavity which is called a pleural cavity, and pleural cavity contains 5 to 10 ml of serous fluid that lubricate both surfaces and allow the lung to move freely during respiration. तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो है वो प्लूरल कैविटी, इसके साथ एसोसिएटेड प्लूरल रब होता है जो हम प्लूरेसी के साथ डिस्कस करेंगे। Now, the surface anatomy of the pleura. Pleura को आप कैसे देख सकते हो? It lies 1 inch above the medial 1/3 of the clavicle. कुछ यहाँ पे जो है वो 1 inch above होता है। ये आपका जो है medial 1/3 of the clavicle है, तो यहाँ पे जो है वो pleura होगा। Then left pleura को जो है वो अगर हम इसको जो है वो मार्क करना स्टार्ट करें, तो we have anterior margin that extend from sternoclavicular joint. This is a sternoclavicular joint, and then it comes to the level of 4th costal cartilage and at 6th costal cartilage and form a cardiac notch. अगेन ये डेविएशन का पॉइंट जो है ये आपके माइंड में अगर रह जाए तो ठीक है कि 4th कॉस्टल कार्टिलेज से जो है ये डेविएशन होती है फॉर द कार्डियक नॉच। Then comes the right-sided pleura. Right-sided pleura जो है वो anterior margin जो है वो उसका कहाँ से extend करता है? Again वही हमारा sternoclavicular, sorry, हाँ जी, हाँ, this is the right sternoclavicular joint and it extend vertically downwards, sorry, हाँ, vertically downwards or up to the 6th costal cartilage, and then its inferior margin passes in mid-clavicular line, then 10th rib at mid axillary line, और posteriorly अगर आप देखो तो last thoracic spine T12 तक जो है वो जाता है। तो इसके ये points जो होते हैं ये sometimes MCQ में जो है वो पूछ लेते हैं कि lower inferior margin of the pleura जो है वो it passes in the mid clavicular line at which vertebral level, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह से होता है। तो मिड क्लैविकुलर लाइन में इट्स ये 8th रिब के लेवल पे है मिड क्लैविकुलर, और यहाँ पे जो है वो 10th रिब के लेवल पे है, और यहाँ पे जो है वो लास्ट थोरेसिक स्पाइन के जो है वो लेवल पे है। देन पोस्टीरियर मार्जिन जो है दैट इज अलोंग द वर्टिब्रल कॉलम फ्रॉम द एपेक्स टू द इंफीरियर मार्जिन। तो ये इस तरीके से जो है वो हम इसको सरफेस पे मार्क कर सकते हैं प्लूरा को। Then we have this parietal pleura. Parietal pleura के जो है वो हम 4 different parts और 4 different divisions होती हैं। सर्वाइकल नाम से पता चलता है, ऑब्वियसली नियर टू द नेक होगा, protrude up into the root of the neck, यानी वो पोर्शन ऑफ द लंग जो प्रोट्रूड करता है अबव द इन द रूट ऑफ द नेक, वो उसको जो लाइन करेगा दैट इज सर्वाइकल प्लूरा। और कॉस्टल is associated with ribs always. तो जो costal pleura है it lies inner surface of the rib, ठीक है, पूरी हमारी thoracic cavity को लाइन करता है, intercostal muscles और and back of the sternum, ठीक है जी। तो वो हो जाएगा कॉस्टल प्लूरा। और देन वी हैव डायफ्रामेटिक प्लूरा जो कि इंफीरियर सरफेस पे आ जाएगा, इट कवर्स अपर सरफेस ऑफ द डायफ्राम। एंड देन वी हैव द मीडियस्टिनल प्लूरा, इट कवर्स द मीडियस्टिनल सरफेस। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसको इसमें डिवाइड करना? बिकॉज इसकी नर्व सप्लाई जो है
इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो सारी की सारी एसोसिएट करती है इसकी इन सारे के सारे एरियाज, यानी सर्वाइकल प्लूरा इज एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चर्स जो उसके करीब प्रेजेंट है। मीडियास्टिनल जो है वो उसके साथ जो है वो एसोसिएटेड है, जो कि मीडियास्टिनम के साथ एसोसिएटेड है। वेसल्स एंड नर्व्स बोथ, डायफ्रामेटिक जो है वो डायफ्राम की नर्व्स और वेसल्स के साथ एसोसिएटेड है, और इसी तरीके से कॉस्टल जो है वो हमारी पूरी थोरेसिक कैविटी के साथ जो है वो एसोसिएटेड है। विसरल प्लूरा को अगर देखें तो उसने इट बेसिकली फर्मली कवर्स आउटर सरफेस ऑफ द लंग एंड इट एक्सटेंड्स अप इनटू द फिशर्स। जितने भी लंग के फिशर्स होते हैं उन सब के अंदर जो है वो एक्सटेंड करता है। दिस इज बेसिकली द टू लेयर्स। हाँ, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है वो पल्मोनरी लिगामेंट को लेके मैंने एक दो एमसीक्यूज देखे हैं, तो इसलिए मैंने ये पॉइंट्स इसमें जो है वो ऐड किया था कि द मीडियास्टिनल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा, यानी मीडियास्टिनल पोर्शन ऑफ द पैराइटल प्लूरा एंड द विसरल प्लूरा, दे आर कंटिन्यूअस विद ईच अदर टू फॉर्म अ ट्यूबुलर शीथ या प्लूरल कफ बनाती हैं। किसके इर्द गिर्द? हाइलम ऑफ द लंग के इर्द गिर्द, विच राइट एंड लेफ्ट बोथ, जिनके बारे में हम बात करते हैं। ये यहाँ पे जो है वो पूरा एक कफ बनता है जिसको हम प्लूरल कफ कहते हैं, और दिस इज द पॉइंट वेयर पैराइटल एंड विसरल प्लूरा दे आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर या इन कंटिन्यूटी विद ईच अदर। तो सराउंडिंग रूट ऑफ द लंग जिसमें वेसल्स, नर्व्स एंड ब्रोंकाई प्रेजेंट होते हैं। अब ऑन द लोअर सरफेस ऑफ दिस रूट ऑफ द लंग दिस प्लूरल कफ हैंग्स डाउन एज अ फोल्ड एंड दिस फोल्ड इज कॉल्ड पल्मोनरी लिगामेंट। This fold, ये जो आपको नीचे नजर आ रहा है, this is called the pulmonary ligament, and this is the point again इसके साथ associated भी MCQ हो सकते हैं कि the point at which the visceral and parietal pleura they come in contact with each other is called, तो इस तरीके से जो है वो इसको कहते हैं। आगे चले तो we have the pleural recesses। अब रिसेसेस जो हैं वो क्या होती हैं? होता ये है कि ड्यूरिंग एक्सपायरेशन lungs do not fully occupy the pulmonary cavities जो हमारी हैं, ठीक है। एक्सपायरेशन में जो है वो लंग फुली उसको ऑक्यूपाई नहीं करता, तो जो पोटेंशियल स्पेस रह जाती है वहां पे दैट इज कॉल्ड रिसेस, ठीक है। तो वी हैव टू इंपॉर्टेंट रिसेसेस, वी हैव कॉस्टो डायफ्रामेटिक रिसेस एंड वी हैव costo-mediastinal recess। तो costo diaphragmatic recess जो है that is present between coastal and diaphragmatic parietal pleura, ठीक है, और ये inferior border के ऊपर आपको मिलेगा। ये आप अगर देखें तो this is costo diaphragmatic recess, larger recess है, और ये इम्पॉर्टेंट भी है कि हमारा जो प्लूरल इफ्यूजन होती है या फ्लूइड होता है तो वो इन रिसेसेस के अंदर जो है वो ज्यादा आके अपनी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। Then we have costo-mediastinal recesses that lies between the costal and mediastinal parietal pleura along the anterior border. अब the lung reaches these recesses only in deep inspiration, यानी deep inspiration होगी तभी पूरे के पूरे ये स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई होती है, अदरवाइज जो है ये पोटेंशियल स्पेस है जो कि लंग को जो है वो बेसिकली एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड करती है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है कि कॉस्टो डायफ्रामेटिक इज इम्पॉर्टेंट, और इसमें जो है वो ये देखना है कि कौन से पार्ट ऑफ द प्लूरा जो है उनको उनके दरमियान में जो है वो बनती है। जैसे कॉस्टो डायफ्रामेटिक इज बिटवीन कॉस्टल एंड डायफ्रामेटिक एंड कॉस्टो मीडियास्टिनल इज बिटवीन कॉस्टल एंड मीडियास्टिनल पैराइटल प्लूरा। अगेन यहाँ पे आपको रिसेसेस जो हैं वो ये नजर आ रही हैं। दिस इज कॉस्टो डायफ्रामेटिक रिसेस जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ये पोस्टीरियर पोर्शन है, पोस्टीरियर व्यू है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, और दिस इज द लेटरल व्यू। तो ये रिसेसेस हो गए। Then nerve supply of the pleura, which is very important. Nerve supply of the pleura जो है वो अगर हम देखें पैराइटल प्लूरा को, तो मैंने जैसे आपको कहा था कि उसमें हमने उसको डिफरेंट पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया। उसको डिफरेंट पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया क्योंकि जो पोर्शन जैसे हमारा जो है वो कॉस्टल पोर्शन है, यानी रिब के साथ एसोसिएटेड या हमारी थोरेसिक कैविटी के साथ एसोसिएटेड पार्ट ऑफ द प्लूरा है, दैट इज इनोवेटेड बाय इंटरकॉस्टल नर्व्स, ठीक है। और ये इंटरकॉस्टल नर्व T1 to T11 जो है वो आपके सारे के सारे पैराइटल प्लूरा को जो है
जो कॉस्टल प्राइटल प्लूरा है उसको इनोवेट करेंगे। देन वी हैव दिस मीडियास्टिनल प्लूरा, और मीडियास्टिनल प्लूरा के साथ एसोसिएटेड वी हैव फ्रेनिक नर्व। तो फ्रेनिक नर्व जो है दैट इनोवेट्स द मीडियास्टिनल प्लूरा। और डायफ्राम की बात करें तो डायफ्राम में जो है वो मिड सेंटर ऑफ द डायफ्राम जिसे हम कहते हैं, सेंटर ऑफ द डायफ्राम जो है दैट इज इनोवेटेड बाय फ्रेनिक नर्व, और जो पेरिफेरल पार्ट ऑफ द डायफ्राम होता है दैट इज इनोवेटेड बाय द इंटरकॉस्टल लोअर 6 इंटरकॉस्टल नर्व्स। तो इसकी नर्व सप्लाई प्लूरा की भी जो है वो अगेन सेम है। तो इसमें नर्व सप्लाई में याद रखने के लिए हमारे पास जो है वो कॉस्टल के साथ जो है वो इंटरकॉस्टल नर्व्स हैं, मीडियास्टिनल के साथ एसोसिएटेड फ्रेनिक नर्व्स हैं, और डायफ्रामेटिक के साथ जो है वो मिडिल पोर्शन में जो है वो फ्रेनिक, एंड पेरिफेरल पोर्शन में जो है वो हमारे पास इंटरकॉस्टल नर्व्स आएंगे। देन वी हैव विसरल प्लूरा। विसरल प्लूरा क्योंकि उसने क्लोजली इन्वेस्ट किया हुआ है लंग को, तो उसमें जो है वो जो लंग की बेसिकली नर्व सप्लाई होगी वो उसी के साथ एसोसिएटेड होगी, एंड दैट इज फ्रॉम द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, फ्रॉम सिंपैथेटिक एंड फ्रॉम पल्मोनरी प्लेक्सस। तो वहां से जो है वो नर्व सप्लाई हमारी विसरल प्लूरा की जो है वो आएगी। ये है सिंपैथेटिक चेन के साथ एसोसिएटेड जो पल्मोनरी प्लेक्सस बनता है, एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के साथ एसोसिएटेड भी जो है वो हमारे पास आएगी, जो कि वेगस के थ्रू आती हैं। वेगस नर्व के थ्रू जो है वो हमें नर्व सप्लाई मिलेगी। देन ब्लड सप्लाई ऑफ द प्लूरा। ब्लड सप्लाई अगेन अगर हम मिड लाइन की बात करते हैं तो यानी मीडियास्टिनल पोर्शन की बात करते हैं, तो वहां पे हमारे पास जो मेजर वेसल है दैट इज इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, और इंटरनल थोरेसिक आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस। जिस तरीके से जो है वो नर्व की बात करें तो हमारे मीडियास्टिनल पोर्शन में फ्रेनिक नर्व थी, तो वेसल्स की बात करें तो वी हैव इंटरनल थोरेसिक आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस। और इसी तरीके से अगर हम कॉस्टल की बात करें तो वी हैव इंटरकॉस्टल आर्टरीज, और और ये बात करें हम पैराइटल प्लूरा की, एंड वी आल्सो हैव मस्कुलोफ्रेनिक वेसल्स, जो कि जो लोअर पार्ट होता है हमारा पैराइटल प्लूरा का, जिसमें डायफ्रामेटिक पोर्शन आ जाता है, और लोअर पार्ट ऑफ द मीडियास्टिनम। तो वहां पे जो है वो हमारे पास मस्कुलोफ्रेनिक वेसल्स जो हैं वो वहां पे जो है वो ब्लड सप्लाई करेंगी। इसी तरीके से विसरल प्लूरा की बात करें तो विसरल प्लूरा के लिए वी हैव ब्रोंकियल वेसल्स। ब्रोंकियल वेसल्स जो कि लंग टिश्यू की बेसिकली ऑक्सीजनेटेड जो नर्व सप्लाई है, अदरवाइज तो वी हैव पल्मोनरी आर्टरीज और वेन्स, लेकिन उनके बारे में हम बाद में बात करते हैं। बट प्लूरा और लंग टिश्यू को जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो आता है थ्रू ब्रोंकियल वेसल्स, और ब्रोंकियल आर्टरीज जो हैं वो समटाइम्स आपके थोरेसिक एओर्टा से जो है वो डायरेक्टली ब्रांचेस आती हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग टिश्यू को प्रोवाइड करते हैं, यानी लंग की अपनी न्यूट्रिशन जो है दैट इज फ्रॉम ब्रोंकियल वेसल्स। lymphatic drainage, this is very important. प्लूरा की lymphatic drainage, अगेन मैं बार बार वही बात रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपको प्लूरा का यानी इमेजिन कर लें आप पैराइटल प्लूरा को, तो आप उसके ब्लड वेसल्स, उसके साथ एसोसिएटेड नर्व्स और उसके साथ एसोसिएटेड लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो आपको आसानी से याद हो जाएगी। अब दिस इज सर्वाइकल प्लूरा। तो सर्वाइकल प्लूरा जो है वो दैट ड्रेन्स इनटू द एक्सिलरी नोड्स, ठीक है। अगर आप इस एरिया को एसोसिएट करें अपने एक्सिलरी एरिया के साथ तो आपको जो है वो इसको कर सकते हो। देन वी हैव दिस सर्वाइकल पार्ट था, फिर हमारे पास आ जाता है मीडियास्टिनल पार्ट। तो मीडियास्टिनल पार्ट जो है वो उसकी सारी की सारी इंटरनल मेमोरी नोड्स में जो है वो हमारी लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है। देन वी हैव दिस डायफ्रामेटिक प्लूरा। तो डायफ्रामेटिक प्लूरा जो है वो उसके बहुत सारे जो हैं वो होते हैं। वी हैव पैरायोटिक लिम्फ नोड्स, वी हैव इंटरकॉस्टल एंड पोस्टीरियर मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स। तो ये सारे के सारे लिम्फ नोड्स जो हैं जो कि डायफ्राम के करीब करीब पाए जाते हैं, ये सारे के सारे ड्रेन करेंगे अगेन प्लूरा को भी। और उसके अलावा जो है वो हमारे पास आ जाता है कॉस्टल प्लूरा। तो कॉस्टल प्लूरा भी इंटरनल मेमोरी नोड्स के अंदर जो है वो जाएगा।
लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो हमारे पास डायफ्रामेटिक प्लूरा जो है ते कार्डियोफ्रेनिक लिम्फ नोड्स होते हैं, पैरा एओर्टिक, इंटरकॉस्टल, पोस्टीरियर, मीडियास्टिनल। तो ये सारे ग्रुप्स जो हैं वो बेसिकली इस पोर्शन को जो है वो ड्रेन करते हैं। तो ये आपको इसमें याद रखने की बात है। देन विजरल प्लूरा जो है बिकॉज डीप होता है तो दे बेसिकली इट ड्रेन्स इनटू द ब्रोंकोपल्मोनरी लिम्फ नोड्स एट द हाइलम ऑफ द लंग। वहां पे जो ब्रोंकोपल्मोनरी लिम्फ नोड्स होते हैं वो उन्हीं पे जो है वो ड्रेन होता है। जब हम लंग की लिम्फेटिक ड्रेनेज करेंगे तो ऑब्वियसली ये उसी के साथ एसोसिएटेड होता है। तो याद रखने की बात इसमें जो है वो ये है कि सर्वाइकल प्लूरा ड्रेन इनटू द एक्सिलरी पोर्शन, मीडियास्टिनल इनटू द इंटरनल मेमोरी, और वही के पार्ट ऑफ द कॉस्टल आल्सो ड्रेन इनटू द इंटरनल मेमोरी, यानी मेमोरी ग्लैंड के साथ एसोसिएटेड जो लिम्फ नोड्स हैं। और इसमें जो है वो डायफ्राम के साथ जो है या एब्डोमेन के साथ जो अपर एब्डोमिनल जो लिम्फ नोड्स होते हैं वहां पे जो ग्रुप्स होते हैं वहां पे जो है वो सारा का सारा ड्रेनेज होगा हमारा डायफ्रामेटिक प्लूरा का। कल के लोग हैं, आपको पता होगा। बेटा प्लूरेसी क्या है? कोई भी नहीं बता रहा। प्लूरेसी क्या है? मैम विसरल प्लूरल जो मेम्ब्रेन है उसकी इरिटेशन। बेटे इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लूरा, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्लूरेसी या प्लूराइटिस। ठीक है, दोनों टर्म्स हम उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्लूरा जो है वो चाहे दोनों में से वो किसी की भी हो सकती है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड प्लूरेसी। यहाँ पे आप देखोगे आपको ये उसमें जो है वो पता चल जाएगा। देन हमारे पास जो है वो दूसरी कंडीशन है दैट इज न्यूमोथोरेक्स। अब व्हाट इज न्यूमोथोरेक्स? क्या होता है न्यूमोथोरेक्स? मैम एयर इन द प्लूरल कैविटी। एयर इन द प्लूरल कैविटी। और एयर इन द प्लूरल कैविटी जो है वो कौन कौन सी कंडीशंस में हो सकती है? मैम कोई ट्रॉमा हो जाए। ट्रॉमा और मैम बुल्ली इरप्शन इन एम्फाइजीमा। एम्फाइसीमा इज एसोसिएटेड विद, वो तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर है। हाँ, और बेसिकली पेनिट्रेटिंग इंजरी कोई भी होगी, ठीक है, स्टैब वुंड है, किसी किस्म की पेनिट्रेटिंग इंजरी हो रही है, तो वहां पे जो है वो न्यूमोथोरेक्स होगा। और न्यूमोथोरेक्स हो जाए तो फिर जो है वो क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप, पेनिट्रेटिंग इंजरी हुई, एयर आ गई प्लूरल कैविटी में, तो उसका फौरन जो है वो नेक्स्ट लंग कोलैप्स, लंग कोलैप्स हो जाएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे आप देखोगे ये लेफ्ट लंग अगर आप देखो तो यहाँ पे जो है वो आपको नजर आ जाएगा, दिस इज कोलैप्स्ड लंग। अब जब कोलैप्स्ड लंग हो जाता है तो हम क्या करते हैं? हम चेस्ट ट्यूब डालते हैं। चेस्ट ट्यूब डालते हैं, चेस्ट ट्यूब इंटरवेंशन। बिल्कुल, चेस्ट ट्यूब इंटरवेंशन करते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात जो मेरी एनाटॉमी के लिहाज से इंपॉर्टेंट थी कि चेस्ट ट्यूब जो है वो आप किस लेवल पे डालते हैं? 9th intercostal space, 2nd intercostal space, 5th intercostal space। अब ये तो सारे के सारे इंटरकोस्टल स्पेसेस पे लोग हैं। हमारी किताब second intercostal space। नहीं मैम, ऊपर की तरफ डलनी चाहिए ना, फ्लूइड के लिए नीचे की तरफ ग्रेविटी की वजह से, और एयर के लिए ऊपर की तरफ। अच्छा, second intercostal space। अच्छा, हमें जो किताब कहती है वो कहती है कि दैट इज इन द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, 5th और 6th इंटरकोस्टल स्पेस में कहती है। और उसमें क्या है, और ये होगी कहाँ? मिड एक्सिलरी लाइन। मैं एनाटॉमी के लिहाज से बात कर रही हूँ, आप क्लिनिकल के लिहाज से बात करें तो मिड एक्सिलरी लाइन, यानी दिस इज ये बुकिश बात है और ऑब्वियसली आपने डालते हुए देखा होगा। तो मिड एक्सिलरी लाइन 5th और 6th इंटरकोस्टल स्पेस। और इसमें जो है वो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क याद रखने का है कि बेसिकली लेवल ऑफ द निपल पे लगाते हैं। ठीक है,
लेवल ऑफ द निपल पे लगाएंगे, और अगर एयर है तो उस चेस्ट ट्यूब की डायरेक्शन हम ऊपर की तरफ रखेंगे, और अगर फ्लूइड के लिए लगा रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन जो है वो हम नीचे की तरफ रखेंगे। ये हमारी किताब कहती है, ठीक है जी। अब न्यूमोथोरिक्स हुआ, देन वी हैव हीमोथोरिक्स। हीमोथोरिक्स में क्या होगा? Blood in the pleural. Blood within the pleural cavity. Blood in ब्लड विद इन द प्लूरल कैविटी, ठीक है जी। और हाइड्रोन्यूमोथोरिक्स, Water and Air in the pleural cavity. Fluid in the cavity. फ्लूइड प्लस एयर, दोनों चीजें जो है अगर होंगी तो द कंडीशन इज कॉल्ड हाइड्रोन्यूमोथोरिक्स, ठीक है। और एम्पाइमा, Pus. हाँ, पस इन द प्लूरल कैविटी। अगर कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से जो है वो पस एक्यूमुलेट हो जाए इन द प्लूरल कैविटी, तो उसको हम कहेंगे एम्पाइमा। अब मुझे ये बताएं कि प्लूरल इफ्यूजन क्या होती है? मैम ये भी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस की वजह से होगी। बिल्कुल, यानी प्लूरेसी कह सकते हैं, प्लूरेसी की वजह से, प्लूराइटिस की वजह से जो है वो हो सकती है, ठीक है। और ट्यूबरकुलस हो सकती है, टीबी के मरीजों में तो बहुत ज्यादा होती है प्लूरल इफ्यूजन, आपने बहुत दफा देखा होगा। अब अगर प्लूरल, हाँ, अब प्लूरल इफ्यूजन हो जाती है तो मेरा कंसर्न एनाटॉमी के लिहाज से कि उसको हम ड्रेन कैसे करते हैं और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मैम 9th इंटरकोस्टल स्पेस से Thoracocentesis. थोरिकोसेंटेसिस कहते हैं, या पैरासेंटेसिस थोरेसिस, जो मैंने यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज किया, हम दोनों चीजें इसको कह सकते हैं। और 9th इंटरकोस्टल स्पेस जो है वो इसके लिए कहते हैं कि बिलो 9 नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए बिलो 9? ऑन द राइट साइड पहले बताएं, फिर लेफ्ट साइड बताएं। Right side में gallbladder. diaphragmatic rupture. और डायफ्राम के अलावा Liver भी, liver. मैम gallbladder, tip of gallbladder pulpate होता है ना? हाँ, लिवर राइट साइड पे जो है वो बेसिकली लिवर को जो है वो, क्योंकि ऑब्वियसली वो हायर होता है एज कंपेयर टू द लेफ्ट वन, ठीक है। तो लिवर, तो 9th इंटरकोस्टल से हम नीचे नहीं जा सकते। और अगेन इसमें भी लाइन इंपॉर्टेंट है, हम कौन सी लाइन में जो है वो करते हैं? Mid axillary. मिड एक्सिलरी लाइन, वेरी गुड। The axillary line. हाँ, और पेशेंट की पोजीशन क्या होगी? मैम अपराइट। अपराइट पोजीशन, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा था ये सारा का सारा, कि इसमें जो है वो प्लूरल इफ्यूजन को ट्रेन करने के लिए जो है वो, अच्छा, अगर प्लूरल इफ्यूजन में जो है वो साउंड क्या आती है चेस्ट की? डल साउंड आएगी। मिलेंगे मैम। अगर फ्लूइड है, Stony dull sound. डल साउंड्स आते हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है वो हम पेशेंट को जो है वो करेंगे। इन्होंने लाइन जो है वो नीडल इंसर्शन साइट जो है वो पोस्टीरियरली बताई है, लेकिन हमारी किताब कहती है कि मिड एक्सिलरी लाइन में जो है वो हम इसको करते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज, आपके मैंने एटलीस्ट 5 और 6 MCQs देखे हैं, मैंने इसीलिए ये जो है वो यहाँ पे पिक्चर लगाई थी, कि जिसमें कहा जाता है कि जी पेशेंट को पूरा सिनेरियो बना के कि जी पेशेंट को जो है वो प्लूरल इफ्यूजन है, उसको जो है वो हमने ड्रेन करना है, तो हम नीडल जो है वो कहाँ पास करेंगे, और तो वो नीडल जो है वो हम कहाँ पास करते हैं, और उसमें हम कौन कौन से स्ट्रक्चर्स की डैमेज को प्रिवेंट करेंगे, ठीक है जी। अब वो जो है इस पिक्चर में बहुत अच्छे तरीके से जो है बताया गया है कि दिस इज एन इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। अब इसको जो है ये इंटरकोस्टल स्पेस है हमारी, और यहाँ पे जो है वो दिस इज इफ्यूजन, जिसको हमने वो करना है, ड्रेन करना है। तो हमने नीडल इंसर्ट की है। बाय द वे, जब हम नीडल इंसर्ट करते हैं तो हम किन किन लेयर्स को पियर्स करते हुए जाते हैं, कोई बताएगा मुझे? मैम स्किन, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और इनर इंटरकोस्टल। स्किन Skin के extra. बाद Skin, extra intercostal muscle.
येलो क्या है? That is ये fascia. Ma'am, Fascia. subcutaneous tissue. Fascia. Subcutaneous fat. Fascia. We have skin, we have fascia, then we have intercostal muscles. ठीक है? और intercostal muscles में जो है वो हमारे पास क्या है? External, internal, innermost, and then comes the parietal pleura. ठीक है? तो अगेन ये आपको सीक्वेंस जो है ये भी आपको पता होना जरूरी है, फिर हम पहुंचेंगे वहां तक। अब हमारा सवाल तो वहीं पे रहा कि हमने जो है वो नीडल को कहाँ पास करना है। नीडल को कहाँ पास करना है? अपर बॉर्डर ऑफ द लोअर रिब। अपर बॉर्डर ऑफ द लोअर रिब। व्हाई? न्यूरोवास्कुलर बंडल लोअर बॉर्डर से पास हो रहा था उसको। हाँ, आपके रिब में इंफीरियरली हमारे पास कोस्टल ग्रूव होता है, जहां पे आप देखोगे ये न्यूरोवास्कुलर बंडल जो है वो वहां पे प्रेजेंट होता है। ठीक है? जिसके अंदर जो है वो वेन, आर्टरी एंड नर्व होती है। ठीक है? तो हमने उसको प्रिवेंट करना है, तो हम हमेशा रिब के जो लोअर रिब है, लोअर रिब के अपर बॉर्डर्स जो है वो हम नीडल इंसर्ट करेंगे। ठीक है जी? इस पूरी की पूरी पिक्चर में इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये थी, लेयर्स थी। और दूसरा जो है वो हमारा पॉइंट कि हमने कहाँ पे नीडल इंसर्ट करनी है फॉर थोरेकोसिंथेसिस, और पेशेंट की पोजीशन क्या होगी। यानी ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो एनाटॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट थी। आगे चले। लंग्स। अब लंग्स हम इसको बहुत बेसिक बात को जो है वो जल्दी गुजारेंगे, फिर हम ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट और ब्रोंकियल ट्री पे आएंगे। ठीक है? lungs basically respiratory organs which are situated in the thoracic cavity. हर लंग जो है वो उस एपेक्स होती है, बेस होती है, उसके बॉर्डर्स होते हैं, उसके कुछ सरफेसेस होते हैं और कॉनिकल इन शेप होता है। ये एक बेसिक बात। of the neck again, इसको याद अगर रखना चाहें तो रखें। It is covered by cervical pleura and grooved anteriorly by the subclavian artery. अगर रिलेशंस की बात करें तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इट इज लंग इज ग्रूव्ड एंटीरियरली बाय द सबक्लेवियन आर्टरी। एंड बेस जो है वो अगर हम बात करें तो बेस जो है दैट इज कॉल्ड डायफ्रामेटिक सरफेस। इट इज कॉनकेव एंड इट सिट्स ऑन द डायफ्राम। Fissure की बात करें तो right has larger, shorter than the left one. It is divided by two fissures, जिसको oblique और ये oblique है, and this is horizontal fissure. It divided into 3 lobes. ठीक है? Upper, middle and lower lobes. Left lung, it is divided by an oblique fissure into 2 lobes. We have upper lobe and we have lower lobe. और there is no horizontal fissure, तो इसलिए जो है वो इसके लोब्स भी 2 हैं। इसमें सिर्फ एक स्पेशल फीचर होता है, दैट इज कार्डियक नॉच एट लोअर पार्ट ऑफ इट्स एंटीरियर बॉर्डर। रूट ऑफ द लंग एंड अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है? ये थोड़ा सा एमसीक्यू मैंने शायद इसके बारे में जो है वो बहुत ज्यादा नहीं देखे। इसमें पल्मोनरी लिगामेंट के बारे में जो है वो पूछा हुआ है 1-2 जगह पे। रूट ऑफ द लंग जो है दैट इज अ शॉर्ट broad pedicle that connect medial surface of the lung to the mediastinum, and it lies opposite the body of 5th, 6th, 7th thoracic vertebra. इस पूरी स्लाइड में आई थिंक यही बात इंपॉर्टेंट है कि रूट ऑफ द लंग जो है वो दैट लाइज एट द लेवल ऑफ 5th, 6th and 7th thoracic vertebra. और इस रूट ऑफ द लंग में जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास जो है वो ब्रोंकस होगा। ठीक है? हमारे पास जो है वो पल्मोनरी आर्टरी होगी एंड हमारे पास 2 पल्मोनरी वेन, यानी 1 आर्टरी, 2 पल्मोनरी वेन्स एंड ब्रोंक। तो ये है, आपने लेवल याद रखना है। और उसके अलावा जो है वो हमारे पास ये पल्मोनरी लिगामेंट होता है दैट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्लूरा। अब आ जाते हैं हम ब्रोंकियल ट्री पे। ट्रेकिया डिवाइड हुआ 2 इन ब्रोंकस पे। किस पॉइंट पे? कैरेना पे। कैरेना कहाँ होता है? कहाँ होता है उसका हमने क्या लेवल डिसाइड किया था कैरेना का? T4 and T5.
अच्छा जी, और करीना के साथ जो है वो एसोसिएटेड कफ रिफ्लेक्स था, वो उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। राइट मेन ब्रोंकस, ये आपको नजर आ रही है, दिस इज द राइट ब्रोंकस। राइट ब्रोंकस जो है वो डिवाइड बिफोर एंटरिंग द हाइलम, ठीक है। दिस इज एक्स्ट्रा पल्मोनरी पोर्शन, ये जो डॉटेड लाइंस में दरमियान में नजर आ रहा है, एंड दिस इज इंट्रा पल्मोनरी पोर्शन। तो ये एंटर होने से पहले हमारा राइट जो ब्रोंकस है, मेन ब्रोंकस है, वो डिवाइड हो जाता है इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर पार्ट, और उसकी वजह से जो है वो फर्दर उसकी डिवीजन हो जाती है। देन लेफ्ट मेन ब्रोंकस की बात करें तो ऑन एंटरिंग हाइलम इट डिवाइड्स इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर लोबार ब्रोंका। यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको नजर आएगा, ये हमारा एक्स्ट्रा पल्मोनरी पोर्शन है, ये इंट्रा पल्मोनरी पोर्शन है। तो इसकी डिवीजन जो है वो राइट साइड की जो है वो पहले हो गई इनटू 2 पार्ट्स, देन फिर फर्दर जो है वो लोअर वन जो है वो आगे फर्दर जाके जो है वो मिडिल एंड लोअर में जो है वो डिवाइड हो जाता है। अब जो इम्पोर्टेंट बात थी, जो इम्पैक्शन की बात की थी हमने, कि राइट मेन ब्रोंकस, अगेन रिपीट कर रही हूँ क्योंकि इसके साथ एसोसिएटेड मैंने एमसीक्यूज जो हैं वो देखे हैं, कि राइट मेन ब्रोंकस इज वर्टिकल, ब्रॉडर, और इसमें कोई भी चीज अगर जो है वो आपके विंड पाइप से जाती है तो वो इम्पैक्ट कहाँ होती है, राइट प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द मेन ब्रोंकस में। अब क्या होता है कि within the lung, each bronchus divided into a number of branches that can be divided into 2 groups. We have conduction zone branches and we have respiratory zone branches. ठीक है, कंडक्शन जोन ब्रांचेस हमने पहले जो डिस्कस किया था, जो मेजर डिवीजन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट थी, तो हमने टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक कहा था कि दिस इज कंडक्शन डिवीजन। तो अगेन जब ब्रोंकाई की डिवीजन है या जोन, इसके जो है वो हम सेपरेट कर रहे हैं, तो वहां पे भी जो है वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो है दैट इज द पार्ट। तो वी हैव प्राइमरी मेन ब्रोंकस, ठीक है, दिस इज द प्राइमरी मेन ब्रोंकस व्हिच इज डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी ब्रोंकस, और सेकेंडरी ब्रोंकस को हम लोबार ब्रोंकस कहते हैं। हमने कहा कि हमारे राइट लंग में 2 फिशर्स ने 3 लोब्स बनाए, ठीक है। हमारे पास ऑब्लिक फिशर था, हॉरिजॉन्टल फिशर था, जिसने सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर लोब्स बनाए थे। तो हमारे पास सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है ऑन द राइट साइड we have 3, और लेफ्ट साइड पे बिकॉज उसकी डिवीजन 2 हुई थी और लेफ्ट लंग में 2 लोब्स हैं, तो we have 2 lobar bronchi. Then these lobar bronchi are further divided into tertiary bronchi. अब tertiary bronchi या segmental bronchus कहते हैं। अब segmental bronchi क्या है कि हमारे जो ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स हैं उनके बारे में आगे हम डिटेल में बात करने लगे हैं। तो जो ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स हैं बेसिकली राइट साइड पे 10 है, ठीक है, ये लोब्स की फर्दर डिवीजन है। तो राइट साइड पे वी हैव 10 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स, और लेफ्ट साइड पे जो है वो 10 किताब कहती है कि तो मेंटल फर्दर मल्टीपल टाइम्स, और फिर जो है ये हमारे पास बनाते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, यानी एक स्मॉलर लेवल पे जो है वो आ जाएगा तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होंगे। अब इन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद ये जो है वो हमारे पास सेकेंडरी ब्रोंकस है। सेकेंडरी ब्रोंकस जो है ये टर्शियरी या सेगमेंटल ब्रोंकस में डिवाइड हुई, और ये सेगमेंटल जो है वो हमारे पास ये देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हुए यहां तक। देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद हमारे पास जो है वो आगे फर्दर जो रेस्पिरेटरी जोन ब्रांचेस स्टार्ट होती हैं। तो वी हैव रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, वी हैव एल्वेलर डक्ट्स, वी हैव एल्वेलर सैक्स दैट ओपन इनटू दीज डक्ट्स, एंड वी हैव एल्वेलाई। तो ये हो जाएगा हमारा रेस्पिरेटरी जोन ब्रांचेस। अब आ जाते हैं ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि दीज आर एनाटॉमिकल, फंक्शनल, सर्जिकल यूनिट ऑफ द लंग, जो इंपॉर्टेंट बात है इसकी। एंड ईच लोबार, ठीक है, दैट इज सेकेंडरी ब्रोंकस गिव्स ऑफ सेगमेंटल या टर्शियरी ब्रोंकस, सॉरी। तो हमारे पास 3 लोब्स हैं और 10 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट ऑन द राइट साइड, और हम चलें 10 ले लेते हैं हमारे लेफ्ट साइड पे भी जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और इन सारे के सारे ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट को जो है वो इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि बेसिकली इनको हम रिसेक्ट कर सकते हैं,
Each segment is pyramidal in shape with the apex directed towards the root of the lung and base जो है वो इसकी costal side पे जो है वो present होती है, जो broader portion होता है. तो apical side जो होती है वो always towards the hilum of the lung जो है वो इसकी present होती है. अब ये वाली स्लाइड से रिलेटेड जो है वो इसके चारों पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट हैं कि इसके साथ एसोसिएटेड जो है वो उन्होंने ढेर सारे एमसीक्यूज जो हैं, यानी लंग्स में अगर इंपॉर्टेंट बात पूछी हुई है तो वो आपके इन ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स के साथ ही एसोसिएटेड जो है वो ज्यादा पूछा गया है. तो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि हर ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट हमने कहा कि पिरामिड शेप है. पिरामिड का जो है वो एपेक्स जो है दैट इज टुवर्ड्स हाइलम, बेस जो है वो कॉस्टल साइड पे आ जाती है और इसको जो है वो सेपरेट करता है लंग में जो है वो बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा होते हैं जो इस पूरे सेगमेंट को जो है वो आइसोलेट करते हैं. तो ये 10 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट जो है ये बेसिकली ये आइसोलेटेड जो है वो एरियाज बन जाते हैं थ्रू दिस कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा. अब इसके कंटेंट क्या होते हैं, ठीक है. अब इसमें होता क्या है, एक तो हो गई हमारी टर्जरी ब्रोंकस या सेगमेंटल ब्रोंकस या जिसको हमने कहा सेगमेंटल ब्रोंकस हम इसको कह रहे हैं बिकॉज ये ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट के साथ एसोसिएटेड है. तो वी हैव सेगमेंटल ब्रोंकस जिसको हम टर्जरी ब्रोंकस कहते हैं. उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है सेगमेंटल ब्रोंकस के बाद उसके साथ एसोसिएटेड, सॉरी कर्सर नहीं चल रहा, उसके साथ एसोसिएटेड जो है हमारे पास सेगमेंटल आर्टरी आती है, दैट इज अ ब्रांच ऑफ पल्मोनरी आर्टरी. ठीक है, ब्लू क्यों है, बिकॉज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है पल्मोनरी आर्टरी में, तो उसको रिप्रेजेंट फिर इसलिए हम ब्लू से कर रहे हैं, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना हमने. ये तो ये अब सेगमेंटल जो है टर्मिनल के बाद ये सेगमेंटल पोर्शन हुआ, उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी की ब्रांचेस हुई इसके साथ जिनको हम सेगमेंटल आर्टरीज कहते हैं. उसके अलावा जो है वो यहाँ पे लिम्फ वेसल्स होंगी जो कि ड्रेन करेंगी और उसके अलावा जो है वो ढेर सारी ऑटोनॉमिक नर्व्स होंगी. अब इंपॉर्टेंट बात जो आपने सिर्फ याद रखनी है वो ये है कि सेगमेंटल वेन्स जो हैं, जो आपको ये रेड कलर में नजर आ रहे हैं पल्मोनरी वेन्स, दे बेसिकली लाई इन द इंटरसेगमेंटल कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा बिटवीन सेगमेंट्स. और अगेन मैं बहुत सारे एमसीक्यूज देखे हैं कि जिसके अंदर सिर्फ यही स्टेटमेंट जो है वो है कि वेन जो है वो पूछ लेते हैं विद इन द सेगमेंट जा रही है, वेन जो है वो एक साइड ऑफ द सेगमेंट जा रही है, वेन जो है वो अकम्पनी करती है पल्मोनरी आर्टरी को. तो यानी ये इसी तरह से डिफरेंट स्टेटमेंट्स को चेंज करके जो है वो किया जाता है. बट सबसे पहली चीज ये कि ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट जो है कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा के साथ एक आइसोलेटेड पूरे का पूरा पीस ऑफ लंग है. उस पीस ऑफ लंग में जो है वो कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा के में वेन्स लाए करती हैं. आर्टरीज जो हैं, जो पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं वो आपके ब्रोंकियोल्स के साथ ट्रेवल करती हैं जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं. और इसमें जो है वो होता क्या है कि ये पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया. अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब आता है हमारे पास तो हाँ जी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हमारे पास आता है तो आपको यहाँ पे ये एल्वेलाई के ऊपर जो प्लेक्सस नजर आ रहा है, दीज आर बेसिकली कैपिलरी प्लेक्सस ऑफ एल्वेलाई. ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो एक्सचेंज होती है और उसके बाद वो ऑक्सीजनेटेड होता है ब्लड, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे इन ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट के कनेक्टिव टिश्यू पोर्शन में जो वेन्स प्रेजेंट हैं उन पल्मोनरी वेन्स में जाता है और यहाँ से कलेक्ट होके मेजर वेन में, और मेजर वेन से जो है वो पल्मोनरी वेन के जरिए से हार्ट के अंदर. अब आगे चलें. आवाज नहीं आ रही. एक सेकेंड बेटे, यहाँ से तो ये वॉल्यूम भी फुल है. मैं ऊंचा बोलूं तो आएगी कि वैसे नहीं आ रही कि डिस्कनेक्ट हो रही है बार बार? मैम ये कुछ नेट का मसला है, डिस्टॉर्ट हो रही है. अच्छा, अभी आ रही है मेरी आवाज? Yes. अभी आ रही है मैम. अच्छा, मैं ये कह रही थी कि ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट के साथ एसोसिएटेड आपके एमसीक्यूज आते हैं, तो आपने इससे रिलेटेड कोई बात अगर मुझसे पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं.
ठीक है, आगे चले फिर। Yes, ma'am. मैम इसका क्लिनिकल हवाले से कैसे क्वेश्चन आ सकता है? बेटे इसके क्लिनिकल सिनेरियो के साथ एसोसिएटेड जो है ना वो बेसिकली अनाटमी के साथ अगर देखो ना तो ये बेसिकली हमने कहा कि इसको रिसेक्ट करना आसान है, यानी अगर इसमें जो है वो कोई आइसोलेटेड कोई चीज है या इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको रिमूव करना आसान है। और वो रिमूव करना क्यों आसान है? क्योंकि ये एक बिल्कुल अलग-अलग समझ लो कि डिविजन्स हुई हुई हैं लंग की। इनका अलग कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा है, शेयरिंग नहीं है किसी और के साथ, ये डायरेक्टली जो है वो अपनी चीजों को ड्रेन करती हैं हाइलम पे, यानी ये किसी के साथ जो है वो रिलेटेड नहीं है। तो इसलिए इनको रिसेक्ट करना, इनको रिमूव करना एज पूरे का पूरा पार्ट जो है वो आसान है। तो इसलिए तो मैम ये इसमें तो very वेसल्स important। वेन होती है, आपने कहा कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा के साथ। हाँ, तो कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा के साथ जो वेन होती है ऑब्वियसली उसको हम लाइगेट करेंगे ना, उसको वो करेंगे, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट यूनिट है पूरा। तो इंडिपेंडेंट यूनिट को रिमूव करना आसान है, अगर ये किसी और चीज के साथ एसोसिएटेड होगा तो फिर इसको रिमूव करना मुश्किल होता है। यानी लंग एज अ होल पूरी की पूरी एक कैविटी होती और या सॉरी कैविटी क्या, एक टिश्यू होता और उसके जो है वो डिफरेंट सेगमेंट ना होते, तो एक पार्ट में अगर इन्फेक्शन है तो ऑब्वियसली उसको स्प्रेड आसान है। यहाँ पे ये है कि इन्फेक्शन आइसोलेट हो जाता है, जब वो आइसोलेट होता है तो उसको रिमूव किया जा सकता है। और कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा जो है उसकी डिवीजन जो होती है वो अच्छी डिवीजन होती है, स्ट्रॉन्गर डिवीजन होती है कि वहां पे आप वेसल्स को लाइगेट करो, सेगमेंटल ब्रोंकाई पे जो है वो उसको टाई कर दो, और सेगमेंटल ब्रोंकाई के साथ पल्मोनरी आर्टरी जो है, जो यहाँ पे आपको नजर आ रही है, ये आप इस पूरे के पूरे पोर्शन को समझ लो यहाँ से कट ऑफ कर दो, तो ये बाकी आपका पोर्शन ऑफ द लंग जो है उसको इफेक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए इसको कहते हैं कि इसको सर्जिकली रिमूव करना आसान होता है। बाकी इसके कंटेंट जो है ये लोग पूछते हैं जो एनाटॉमी के लिहाज से जो है, और वो जो है वो यहाँ पे इस स्लाइड में अगर आप देखो तो आपको सेगमेंटल ब्रोंकस है, सेगमेंटल आर्टरी है, लिम्फ वेसल हैं, ऑटोनॉमिक नर्व्स हैं, और उसके साथ जो है वो आपके वेन्स जो हैं, जो इंपॉर्टेंट बात इसमें है वो आपके बाहर की तरफ है कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा के साथ साथ ये जो आपको नजर आ रही हैं जो इसको ड्रेन करती हैं। और यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोसेस की पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है, कैपिलरी प्लेक्सस होता है, एल्वुलर प्लेक्सस होता है, एल्वुलाई के ऊपर जो है कैपिलरी प्लेक्सस है, एक्सचेंज हो रहा है, सॉरी, और उसके बाद जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो क्लीन होने के बाद जो है वो ब्लड सारा का सारा ये पल्मोनरी वेन्स के जरिए से जो है वो आपके लेफ्ट हार्ट में चला जाता है। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा जो है वो एक प्रोसेस है, एक साइकिल है जो चलता है, और इसमें इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना ही है कि इसको रिसेक्ट किया जा सकता है। अगेन ये भी इसका जो है वो फर्दर वही है कि इसके स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से एक ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट का जो है वो होता है, इस तरीके की ब्रांचिंग होती है ढेर सारी इसके अंदर जो है वो, और वही सारी चीजें जो है वो प्रेजेंट होती हैं। और ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट में कहते हैं कि 300 मिलियन एल्वुलाई होते हैं, यानी बहुत ही माइक्रोस्कोपिक इसमें जो है वो स्ट्रक्चर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब ब्लड सप्लाई पे आते हैं लंग की। वी हैव ब्रोंकियल आर्टरीज। अब ये ब्रोंकियल आर्टरीज जो है वो बेसिकली लंग टिश्यू की जो है वो ब्लड सप्लाई है, जो हमारे पास ऑक्सीजनेशन के लिए आ रहा है वो आ रहा है इस रूट से, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन्स। बट लंग का अपना टिश्यू जो है ऑब्वियसली उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो न्यूट्रिशन जो है वो आ रही है थ्रू ब्रोंकियल आर्टरीज which are the branches of the descending thoracic aorta which supply oxygenated blood to the bronchi, to the lung tissue and to the visceral pleura. और ब्रोंकियल वेन्स जो है ऑन द राइट साइड जो है राइट लंग में जो है वो ड्रेन होती हैं एजाइगस सिस्टम में, और लेफ्ट साइड पे हमारा हेमीजाइगस सिस्टम ऑफ वेन्स होता है। तो राइट लंग जो है वो अजाइगस वेन में, लेफ्ट जो वेन्स हैं वो हेमीजाइगस सिस्टम में जो है वो जाती हैं। और उसके बाद वो इंफीरियर वेना कैवा में, इंफीरियर वेना कैवा से जो है वो राइट एट्रियम में, और वो एक साइकिल जो है वो उसका चलता है। इसी तरीके से पल्मोनरी आर्टरी का that carry non-oxygenated या deoxygenated blood, ये right ventricle से लेके जाती है to the lung alveoli, और वहां से जो है वो आपने देखा कि किस तरीके से ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट से जो है वो ऑक्सीजनेट होता है ब्लड, और फिर जो है वो पल्मोनरी वेन्स के जरिए से that carry oxygenated blood from lung alveoli to the left atrium of the heart, वहां तक जो है वो ये लेके आती हैं। Now nerve supply of the lung कहाँ से आती है?
पल्मोनरी प्लेक्सस से। पल्मोनरी प्लेक्सस जो है वो at the root of the lung, it is formed by autonomic nervous system. यहाँ पे आप देखोगे तो from sympathetic and parasympathetic दोनों तरह के fibers आते हैं। Sympathetic fibers जो हैं sympathetic trunk से आएंगे और वो cause करेंगे bronchodilation and vasoconstriction। कल हमने इनके बारे में बात की थी कि किस दोनों nervous system का जो है वो effect जो है वो इन organs पे क्या होता है। Then we have parasympathetic division जो कि वेगस नर्व से आती है, और वेगस नर्व जो है वो ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन करती है, सिक्रीटोमोटर फाइबर्स देती है, ब्रोंकियल ग्लैंड्स को वेजोडाइलेटेशन करती है। ये इसका फंक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है वेगस नर्व को लेके। और उसके अलावा जो है वो जो मैंने कैरेना की बात की थी, तो कैरेना के ऊपर जो है वो वेगस नर्व की जो है वो बहुत ज्यादा नर्व एंडिंग्स होती हैं, और आपकी कोई भी चीज या कोई भी फ्लूइड जब जाता है तो वो कफ रिफ्लेक्स जो है वो कैरेना के साथ एसोसिएट हम करते हैं, और वहाँ वो एसोसिएट, और वो क्यों है, क्योंकि वहां पे जो है वो नर्व एंडिंग्स होती हैं और वो वेगस जो है वो प्रोवाइड करती है। तो हमारा कफ रिफ्लेक्स जो है वो दैट इज एसोसिएटेड विद दिस वेगस नर्व। ठीक है, नर्व सप्लाई के बाद जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज द लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द लंग। अब लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो लंग का, उसको हम दो डिविजन्स कर देते हैं। हम करते हैं एक सुपरफिशियल डिवीजन और एक करते हैं डीप डिवीजन। सुपरफिशियल जो है लिम्फ नोड्स वो प्रेजेंट होते हैं बेसिकली जो हमारा विजरल प्लूरा है। आप देखो कि बीनीथ द विजरल प्लूरा जो है, जो लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं वो ड्रेन होते हैं सारे के सारे सुपरफिशियल, उनको हम कहते हैं सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स। और जो डीप हैं वो प्रेजेंट होते हैं बेसिकली जो हमारे ब्रोंकाई होते हैं उनमें जो सबम्यूकोजल लेयर होती है, तो वहां पे जो लिम्फ जो कलेक्ट करते हैं उनको जो है वो हम कहेंगे डीप। यानी इन दोनों की लोकेशन आपको याद अगर रह जाए कि सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स जो हैं लंग के, दे आर प्रेजेंट बीनीथ द विजरल प्लूरा, और जो डीप लिम्फ नोड्स हैं दे आर प्रेजेंट इन द सबम्यूकोजा ऑफ द ब्रोंकियल वॉल। ठीक है, ये दोनों बातें अगर आपको याद रहता है। सुपरफिशियल रिपीट कर दें। कर दो बेटा, जो सुपरफिशियल लिम्फ नोड ऑफ द लंग हैं दे आर प्रेजेंट बीनीथ द विजरल प्लूरा या डीप टू द विजरल प्लूरा, और जो हमारा डीप ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स हैं, सॉरी लिम्फेटिक्स हैं, तो डीप ग्रुप ऑफ लिम्फेटिक्स ऑफ द लंग जो हैं दे आर प्रेजेंट इन द सबम्यूकोजा ऑफ द ब्रोंकाई। ठीक है, अब जो सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स हैं, ये आपको रेड, आपको जो एरोज नजर आ रहे हैं, दे ऑल ड्रेन इनटू द ब्रोंकोपल्मोनरी या हाइलर लिम्फ नोड्स के अंदर ड्रेन हो जाते हैं। ठीक है, अब जो डीप ग्रुप है वो सबसे पहले पल्मोनरी नोड्स में जाएंगे, देन पल्मोनरी से जो है वो आपके ब्रोंकोपल्मोनरी हाइलर नोड्स में आएंगे। फ्रॉम हाइलर नोड्स ये जाएंगे आपके, यहाँ पे अगर आप देखो तो दिस इज ट्रेकियोब्रोंकियल लिम्फ नोड्स या कैरनल लिम्फ नोड्स इनको कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे, और कैरनल लिम्फ नोड्स जो हैं वहां से फिर पैराट्रेकियल यानी साइड ऑफ द ट्रेकिया पे या अराउंड द ट्रेकिया जो लिम्फ नोड होंगे पैरा ब्रोंको लिम्फ नोड में कर दिया या ट्रेब्रोंक कर दिया, फिर जो है वो पैराट्रेकियल हो गया। पैराट्रेकियल मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज बड़ी डिस्टॉर्ट हो रही है। अभी आ रही है? जी मैम अभी ठीक है। अच्छा ठीक है, मेरा ख्याल है मुझे थोड़ा सा क्लोज होना। अच्छा, यहाँ तक तो मेरे ख्याल है सबको भी अंडरस्टैंड हो गया कि इसमें हमने याद क्या रखना था। इसमें हमने रखना था कि सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स जो हैं दे आर प्रेजेंट बीनीथ द विजरल प्लूरा एंड डीप लिम्फ नोड्स आर प्रेजेंट इन द सबम्यूकोजा ऑफ द ब्रोंकाई। ठीक है, ड्रेनेज ब्रोंकोपल्मोनरी, कैरनल
पैराट्रेकियल, मीडियास्टिनल, और वहां से लेफ्ट साइड जो है दैट ड्रेन इनटू थोरेसिक डक्ट, और राइट साइड जो है वो राइट लिम्फेटिक डक्ट। ये बात जो है वो यहाँ पे याद रखें कि राइट साइड पे जितनी भी ड्रेनेज होती है थोरेसिक कैविटी में, सिर्फ लंग की नहीं बाकी ड्रेनेज भी होती है, तो वो सारी की सारी राइट साइड में राइट लिम्फेटिक डक्ट के जरिए से होती है, और वहां से जो है वो वीनस सिस्टम में चली जाती है। और जो लेफ्ट साइडेड है, लेफ्ट साइड में जो है वो थोरेसिक डक्ट में जो है वो डायरेक्टली ड्रेन होते हैं। ये आप देखोगे, दिस इज थोरेसिक डक्ट जो कि डायरेक्टली ओपन होती है इनटू द सबक्लेवियन वेन, ये यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये हो गया लिम्फेटिक ड्रेनेज जो इम्पोर्टेंट था इसमें। अब रह गया ब्रीदिंग मैकेनिज्म। अच्छा, ये आई डोंट नो, ये मेरा ख्याल है कि थोरेसिक वॉल के साथ जो है वो एसोसिएटेड था, पर लंग्स के साथ जो है वो इसमें इम्पोर्टेंट बात जो इंस्पायरेशन में जो मसल कैसे एक्ट करता है, सिर्फ हम उन चीजों को जो है करेंगे। छोटी सी 2 स्लाइड्स हैं। ब्रीदिंग मैकेनिज्म 2 पार्ट्स होते हैं, हमें सबको पता है, इंस्पायरेशन होता है और एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन होता है। ठीक है, तो इंस्पायरेशन इज फ्लो ऑफ एयर इनटू द लंग्स, आवाज फिर से करते हैं। एक्चुअली यहाँ कोई अवेलेबल नहीं है, वरना मैं उनको बुलाती। अब आ रही है बेटे? इंटरनेट इज अनस्टेबल, इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू है मैम। अच्छा जी, अब आ रही है बेटे? जी मैम अभी आ रही है, बीच बीच में जो है वो वॉइस डिस्टॉर्ट हो रही है। अच्छा ठीक है। हम बात कर रहे थे ब्रीदिंग मैकेनिज्म इंस्पायरेशन की, यानी फ्लो ऑफ एयर इनटू द लंग्स। अब इसमें जो है वो हमारे जो मसल्स जो इंस्पायरेशन, जिनको हम मसल्स ऑफ इंस्पायरेशन कहते हैं, दीज आर डायफ्राम जो हेल्प करता है, और इंटरकॉस्टल मसल्स जो इंपॉर्टेंट जो मेन मसल्स हैं। आवाज का इशू सब कह रहे हैं, इंटरनेट का कह रहे थे कि इंटरनेट की वजह से शायद। ठीक है, अभी आवाज आ रही है मेरी बेटे? जी जी मैम अभी आ रही है। आ रही है। तो इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, अब इसमें जो बात सिर्फ याद रखनी है आपने कि जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो मूव करता है इंफीरियरली, और जब वो इंफीरियरली मूव करेगा तो स्पेस थोरेसिक कैविटी में इंक्रीज होगी, और जब स्पेस मतलब ये इंस्पायरेशन में ये सारा का सारा प्रोसेस होगा। और जब इंटरकॉस्टल एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो हैं, यहाँ पे आप देखो, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये चेस्ट कैविटी को जो है वो उसको एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर को जो है वो इंक्रीज करेंगे, जैसे यहाँ पे देखो। ठीक है, तो फुल इंस्पायरेशन में जो है वो एंटीरियरली चेस्ट मूव करती है और लेटरली, और डायफ्राम जो है वो इंफीरियरली। तो हमारे पास स्पेस ज्यादा आ जाती है, तो उसमें जो है वो हमारी एयर जो है वो हम ज्यादा ब्रीद इन कर सकते हैं। Size of the thoracic cavity increases. It increases in volume of the cavity and decrease in pressure. So air flow from high to low pressure. तो हमारी ये होगा। अब इसमें जो changes थे, याद रखने की सिर्फ 2-3 बातें हैं इसमें। एक तो मैंने कहा कि इंस्पायरेशन का मसल कौन सा है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, डायफ्राम, जो बेसिक याद रखने की बात है। डायफ्राम जब भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो नीचे जाएगा, और वो नीचे जाएगा तो थोरेसिक कैविटी बड़ी हो जाएगी, और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो थोरेसिक कैविटी आगे को मूव करेगी, हमारा जो एंटीरियर पोर्शन है थोरेक्स का, तो उससे जो है डायमीटर भी इंक्रीज हुआ और हमारा वर्टिकल डायमीटर भी जो है वो इंक्रीज हुआ डायफ्राम की वजह से। तो हमारा ये पूरे का पूरा जो है वो इंस्पायरेशन में हमारी ये हेल्प होती है। अब एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन में क्या होता है, ये दोनों मसल्स जो हैं रिलैक्स हो जाते हैं, यानी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल भी और डायफ्राम भी। डायफ्राम जब रिलैक्स होगा वो सुपीरियरली जाएगा, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल होंगे वो थोरेसिक कैविटी को पीछे करेंगे, तो एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर डिक्रीज हुआ और हमारा वर्टिकल डायमीटर भी डिक्रीज हुआ। जब दोनों डिक्रीज हुआ तो ये हमारा स्टेट ऑफ एक्सहेलेशन जो है वो बनती है। ठीक है, तो इसमें यही 3 बातें अगर आपको याद रह जाएं, ये 2 मसल्स और इनके फंक्शन, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को लेके, और डायमीटर्स आपके जहन में रह जाएं तो आपको
प्रॉब्लम नहीं होगा, बस जस्ट 1 मिनट के केबल से इसको सॉल्व कर रहे हैं। ओके मैम वीडियो स्टक होगी। सेंटर। जी मैम, वो ये थोड़ा सा इसको कनेक्ट कर रहे हैं केबल के साथ। ओके ओके। हाँ जी, फुल स्क्रीन करके उसी तरीके से। थैंक यू। अब ठीक है, आवाज मेरी बेहतर है? जी मैम। मैम अब क्लियर है? यस मैम। चलें जी, ठीक है। आई थिंक इट्स बेटर नाउ। ठीक, थैंक यू मैम। मैं स्टार्ट करूं? जी जी, बिस्मिल्लाह करें। अच्छा जी, अब है कि ये रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स थे। अब हमारे पास कुछ नॉन रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स हैं। दे कैन बी कॉज्ड बाय रिफ्लेक्सेस या वॉलंटरी एक्शंस। अब इनको कौन कौन से होते हैं? कफ है, स्नीज है, लॉफिंग, क्राइंग, यॉन, हिकअप, ये सारे के सारे हमारे नॉन रेस्पिरेटरी जो है वो एयर मूवमेंट्स कहलाते हैं। अब आ जाते हैं क्लिनिकल कोरिलेट्स की तरफ। अब ये सारे के सारे बेसिकली हम एनाटॉमी के साथ जो है वो कोरिलेट करते हैं, तो इसलिए मैं इनको वन बाय वन जो है डिस्कस करने की कोशिश करूंगी। एस्पायरेशन ऑफ फॉरेन बॉडीज कहाँ होती है? इंफेक्शन कौन बताएगा? हमने बहुत दफा डिस्कस किया है इसको। राइट लोअर राइट मेन ब्रोंकस। राइट ब्रोंकस। राइट ब्रोंकस। और वो जो है वो इंफेक्शन क्यों होती है? उसका रीजन फॉरेन बॉडी। वाइडर होता है। It's shorter, wider and narrow. shorter and wider वाइडर, And straight. वाइडर, then वर्टिकल। is it upper lobe or lower Small. lobe? लोअर में जाएगा ना, अपर के लिए तो उसको ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, तो नीचे जाएगा। वर्टिकल है ना, वर्टिकली नीचे जाएगा। ठीक है। देन मैम एक बात ये पूछनी थी, एक दो excuse me, हाँ मैम, एक दो दफा ये क्वेश्चन भी आया कि मतलब इसी तरह मतलब कोई फ्लूइड एस्पायरेट किया है और वो जो है ना वो कौन से सेगमेंट में जाएगा, कौन वो भी मतलब जाएगा राइट में, आपने एक्सप्लेन कर दिया, बट कौन से सेगमेंट में जाएगा ये भी अच्छा, बता अब दीजिए। इसमें अगर हम लॉजिकली देखें, ठीक है, तो हमने कहा कि हमारा जो राइट प्राइमरी ब्रोंकस है वो डिवाइड हुआ, जो उसका एक्स्ट्रा पल्मोनरी पोर्शन है, यानी लंग में अंदर एंटर होने से पहले दो में डिवाइड हो गया, अपर और लोअर में, ऐसा था। और फिर जो लोअर वन है दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2। ठीक है, तो हमने कहा लोअर वन जो है दैट इज मोर वर्टिकल, दैट इज मोर वाइडर। लेकिन इसमें जो है अगर हम देखें तो सबसे पहले प्रिवेंशन आएगी एट द पॉइंट ऑफ कैरेना। कैरेना पे क्यों आएगी? वहां पे कोई भी चीज टच करती है तो वहां पे वेगस नर्व, मैंने जैसे बताया कि नर्व एंडिंग्स होती हैं जो कि कफ रिफ्लेक्स करती हैं। ठीक है, एक तो पॉइंट वो, अगर वो वहां से भी हो गया और फ्लूइड जो है वो आगे चला गया या इंफेक्शन हो गई, तो हमें किताब कहती है लोअर ब्रोंकस पे। अब लोअर ब्रोंकस पे जो है, क्योंकि अपर ब्रोंकस को देखें आगे हम जो है वो ब्रोंकियल ट्री को जब हम हिस्टोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तब हम दोबारा उसकी शेप को देखेंगे, तो अपर ब्रोंकस में जो है वो फिर भी कंपैरेटिवली थोड़ा सा वो हॉरिजॉन्टली चला जाएगा, बट लोअर वन जो है, अब इसमें ये मिडिल में भी जा सकता है और लोअर लोब ऑफ द राइट लंग में भी जा सकता है। ठीक है, उसकी शेप के लिहाज से अगर देखें तो
और इसी तरीके से लेफ्ट के भी चांसेस हो सकते हैं, बट लेफ्ट के चांसेस कम हैं एज कंपेयर टू राइट, जो हमने कहा। और उसमें वो फ्लूइड जो जैसे आप कह रहे हैं, तो वो फ्लूइड जो है वो आपके मिडिल लोब में भी जा सकता है और लोअर लोब में भी जा सकता है, यानी मिडिल एंड लोअर लोब ऑफ द राइट लंग जो है वो ज्यादा इससे इफेक्ट हो सकते हैं अगर हम परसेंटेज देखें तो। और अगर इसको जो है वो 1 2 3 करके देखें तो राइट लोअर पहले आएगा, फिर राइट मिडिल आएगा, फिर लेफ्ट साइडेड लोब्स आएंगे, ठीक है। यानी मेरे हिसाब से 1 2 3 जो है वो ये बनता है। नेक्स्ट क्लिनिकल ब्रोंकोस्कोपी, हम ब्रोंकोस्कोप डालते हैं फॉर विजुअलाइजिंग पूरे का पूरा हमारा ब्रोंकियल ट्री को देखने के लिए कि वहां पे आगे जो है वो हमारे क्या प्रॉब्लम है। अब सर्जिकल एक्सेस टू द लंग, उसको हम कहते हैं थोरैकोटॉमी, ठीक है, उसको सर्जिकल एक्सेस टू द लंग। अब ये सर्जिकल एक्सेस जो है वो किसी भी चीज के लिए हो सकता है, यानी फॉर रिमूवल ऑफ क्या उसको कहते हैं ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट को रिमूवल के लिए भी हो सकता है। अब ये सर्जिकल एक्सेस कहाँ से होगा, इसको भी हमने आगे डिस्कस किया। सर्जिकल एक्सेस कहाँ से होगा लंग में? थोरैकोसेंटेसिस, इसको कहते हैं थोरैकोटॉमी। मैम स्टर्नम से होगा, राइट साइड से। अच्छा, और राइट लेटरल साइड ऑफ लंग। अगेन जो हमारी किताब जो बुकिश बात है, सर्जिकल एक्सेस तो इंटरकोस्टल स्पेस से होगा। सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट बात है कि इंटरकोस्टल स्पेस से होगा। उसमें जो है वो समटाइम्स अगर आपको ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट की रिसेक्शन करनी है तो आपको रिब रिमूव करनी पड़ेगी कोई ना कोई, ठीक है, वो एक्सटेंसिव केसेस में। लेकिन अगर हम सिंपल एक्सेस की बात करें तो इंटरकोस्टल स्पेस, और इंटरकोस्टल स्पेस की जब हम बात करते हैं तो कोई भी प्रोसीजर हो तो उसको ये मिड एक्सिलरी लाइन तक लेके जाते हैं, ठीक है। और मिड एक्सिलरी लाइन में भी जो है वो ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है कि आपने कहाँ रिसेक्शन करनी है, लेवल उस पर भी डिपेंडेंट है, बट ये कहते हैं कि अबव द 9th जो है वो हमें करना चाहिए, जो किताब कहती है। और अगेन उसमें वो सारी लेयर्स जो हैं वो पियर्स होती हैं, जैसे स्किन, फेशिया, मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं, देन प्लूरा, फिर उसके बाद जो है वो प्लूरल कैविटी आती है, पैराइटल कैविटी, विसरल, और फिर उसके बाद हम जो है वो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट तक जाते हैं। और ड्यूरिंग सर्जरी अगर हमने ये कुछ रिमूव करना है तो हम लंग को क्या करेंगे, हम लंग को डिफ्लेट करते हैं फॉर सर्जिकल रिसेक्शन, ठीक है। जिस साइड पे हमने लंग में सर्जरी करनी होती है उस साइड को हम डिफ्लेट करते हैं, ठीक है। अगेन वही अगला नेक्स्ट है हमारे पास सेगमेंटल रिसेक्शन ऑफ द लंग, ठीक है। वही जैसे मैंने बताया कि सर्जिकल एक्सेस करेंगे और जहां से हमें वो रिमूव करना है पूरे का पूरा कनेक्टिव टिश्यू जो हमारा ये ट्रायंगुलर या पिरामिड बना हुआ है ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट का, उस पूरे को रिमूव करेंगे, पल्मोनरी वेन्स को टाई करेंगे और सेगमेंटल ब्रोंकस को जो है वो उस लेवल से जो है वो हम उसको रिसेक्ट करके निकाल लेंगे। देन ब्रोंकियल एस्थमा, एस्थमा में क्या होता है? मैम ब्रोंकोस्पेज़म होता है। ब्रोंकोस्पैज्म होता है, ब्रोंकोस्पैज्म होता है या ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है। और उसमें जो है वो दूसरी चीज क्या होती है, म्यूकोजल इन्फ्लेमेशन हो सकती है उसके साथ एसोसिएटेड, जिसकी वजह से सिक्रीशन वो होती हैं उसके अंदर एक्यूमुलेट हो जाती हैं, और उसकी वजह से जो है वो साउंड क्या आती है, वीजिंग। पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्लिनिकल उसमें से सिनेरियो में, तो आपने पेशेंट देखे होंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म के साथ। मैम डीवीटी से थ्रोम्बा डिटेच होता है, एम्बुलर बन के वो वहां पर पल्मोनरी में आ जाता है। कौन सी वेसल को डैमेज करता है या ब्लॉक करेगा? पल्मोनरी वेसल्स को, पल्मोनरी आर्टरीज को, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं उनको करेगा, और ये जो है ये मोस्टली जो कंपाउंड फ्रैक्चर्स होते हैं, ठीक है,
तो जो क्लिनिकल कंडीशन जो इसके साथ मोस्टली हम एसोसिएट करके बताते हैं, वैसे तो उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, कोई फैट ग्लोब्यूल हो सकता है, कोई एयर बबल हो सकता है, उसके अलावा जो है वो हमारे पास और क्या होता है, ब्लड क्लॉट हो सकता है, और ब्लड क्लॉट के साथ एसोसिएटेड हम कहते हैं जी कंपाउंड फ्रैक्चर अगर होता है हमें लोअर लिम्ब में या कहीं भी, तो वो उन फ्रैक्चर साइट से कोई भी आपका ब्लड क्लॉट जो है वो आपके राइट हार्ट में आता है, राइट हार्ट से जो है वो पल्मोनरी वेसल के जरिए से जो है वो आगे पास हो जाता है लंग्स में, और वहां जाके जो है वो पल्मोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर देता है। जब वो ब्लॉक करता है तो क्या होता है कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ, और फिर उसके बाद जो है वो क्या होता है कि अगर वो इम्पैक्ट वहीं पे उसकी इम्पैक्शन वहीं पे रह जाती है तो वो पूरे का पूरा जो है वो पोर्शन उसमें इन्फेक्शन हो जाता है लंग में, और वो जो है वो ऑब्वियसली लंग का कोई भी पोर्शन काम नहीं करेगा तो ऑब्वियसली वो डिस्ट्रेस मजीद बढ़ता चला जाएगा, और उसके साथ साथ अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो वो बहरहाल पल्मोनरी एम्बोलिज्म बेसिकली हम कहते हैं कि जी लाइफ थ्रेटनिंग जो कंडीशन है वो, और इसमें जो है वो इसको प्रिवेंट करती है कोलेटरल सर्कुलेशन, ठीक है। हेमोप्टिसिस किसे कहते हैं? ब्लड इन स्पूटम, ब्लड इन स्पूटम, स्पूटम कंटेनिंग ब्लड। हाँ, और ये मोस्टली जो है वो हम न्यूमोनिक कंडीशंस में भी कुछ में भी हो जाता है, उसके साथ साथ जो है वो हमारे ट्यूबरक्लोसिस में बहुत कॉमन है, ये सारे के सारे जो है वो इसके साथ एसोसिएटेड। अब आ जाते हैं जी सीओपीडी। सीओपीडी में जो है वो लंग टिश्यू को क्या होता है? सीओपीडी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। सबसे पहले तो जो है वो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को लें तो क्या होगा, दिस इज नॉर्मल ब्रोंकस, और ये जो है वो आपके पास क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के साथ है, यानी ल्यूमेन ऑफ द ब्रोंकस जो है वो स्मॉल हो जाएगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन तो हो ही रही है, उसके साथ साथ जो है वो इन्फ्लेमेशन ऑफ द वॉल हुई है और उसकी वजह से ल्यूमेन कम हो गया। दूसरी कंडीशन जो है वो क्या है कि एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा में क्या होता है, एबनॉर्मल डायलिटेशन ऑफ द एल्वेलर सैक्स हो जाती है, ठीक है, और डैमेज एल्वेलाई जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो नजर आते हैं, ये नॉर्मल है, और दीज आर डायलेटेड एंड डैमेज्ड एल्वेलाई। फिर है निमोनिया। निमोनिया में क्या होता है कि एल्वेलाई बिकम फिल्ड विद फ्लूइड प्रिवेंटिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कुछ इस तरीके से जो है वो हो जाते हैं एयर सैक्स। और नेक्स्ट इज जो इम्पोर्टेंट है ये लंग कैंसर में 1/3 ऑफ द ऑल कैंसर डेथ जो है वो लंग कैंसर से होती है, इंक्रीज इंसिडेंस एसोसिएटेड विद स्मोकिंग। और इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 80 to 85% ऑफ द लंग कैंसर्स जो हैं वो बेसिकली हैं ये नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर्स, और ये हैं एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा एंड लार्ज सेल कार्सिनोमास, और 10 to 15% जो है वो बेसिकली हमारे स्मॉल सेल कार्सिनोमा, लेकिन ज्यादा जो है वो कहते हैं कि फेटल जो है वो होता है आपका स्मॉल सेल कार्सिनोमा। अगेन इसकी स्टेजिंग में जो है वो बेसिकली हम स्प्रेड देखते हैं कि पार्ट कौन से पार्ट को, प्ल्यूरा को टच किया है कि नहीं, और उसके साथ साथ जो है लिम्फेटिक्स जो हैं वो उनके कौन कौन से ग्रुप्स जो हैं वो इन्वॉल्व हुए हैं, और उसके बाद जो लास्ट स्टेज होती है दैट इज 4, उसमें जो है वो उसके मेट्स आने शुरू हो जाते हैं डिफरेंट पार्ट्स में। ये आप देखो तो इसकी स्टेजिंग जो है वो आपको यहाँ से समझ आएगी, बट आपको जो है वो जो याद रखना है दैट इज द मोस्ट कॉमन कैंसर जो हैं वो कौन सी टाइप के होते हैं, दीज आर स्क्वेमस सेल, एडिनो एंड स्मॉल सेल कार्सिनोमास। अब आ जाते हैं हिस्टोलॉजी की तरफ लंग की। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है दैट इज ब्लड एयर बैरियर, ठीक है, जिसके साथ एसोसिएटेड हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। और एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है जिसको हम करेंगे वो है हमारा चेंज इन द ब्रोंकियल ट्री, यानी ब्रोंकियल ट्री के स्ट्रक्चर में जो है वो शुरू से एंड तक जो है वो कौन से चेंजेस आते हैं। अगेन वही डिविजन अपर एंड लोअर। रेस्पिरेटरी एपिथेलियम पे आते हैं। हमारे पास जो है 5 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं हमारे इस एपिथेलियम के अंदर, और इस एपिथेलियम को जो है वो हम कहते हैं सूडोस्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कलमनर एपिथेलियम, ठीक है। अब इसमें जो टाइप ऑफ सेल्स हैं वी हैव सीलिएटेड कलमनर सेल्स, जो आपको ये लॉन्ग कॉलम शेप सेल्स नजर आ रहे हैं जिनके ऊपर ढेर सारे सीलिया हैं। और ये सीलिया क्यों है?
कि वो प्रोपेल कर सकें म्यूकस को, डस्ट पार्टिकल्स को बाहर की तरफ, ठीक है। वी हैव गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स जो है वो म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स हैं, और ये क्या करेंगे कि ये म्यूकस सिक्रीट करेंगे और उसके बाद जो है वो क्लियरिंग ऑफ पैसेज जो है उसके में हेल्प करेंगे। देन वी हैव दीज बेसल सेल्स जिनको हम स्टेम सेल्स कहते हैं, यानी हमारे जितने 4 टाइप ऑफ सेल हैं, अगर ये डेफिशिएंट होंगे तो ये स्टेम सेल्स जो हैं ये वो नया सेल बना के जो है वो दे देंगे। देन वी हैव ब्रश सेल्स। ब्रश सेल्स जो हैं वो उनके नीचे जो है वो सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती हैं और सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। एंड वी हैव स्मॉल ग्रेन्यूल सेल्स जो कि 5% होते हैं, जो यहाँ पे आपको वो भी बेसल सेल की तरह होते हैं, डार्क होते हैं, उनमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, और ये पार्ट है डिफ्यूज न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम का। तो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में आपको टाइप्स ऑफ सेल्स या और कौन सा एपिथेलियम है, देन ये अगेन वही, अब आ जाते हैं ब्रोंकियल ट्री। अब क्या होता है कि इसके कंपोनेंट्स क्या हुए, एक तो हो गया एपिथेलियम जो हमने याद रखना है, ठीक है। दूसरी चीज हो गई ग्लैंड्स, ठीक है। तीसरी चीज है कार्टिलेज। कार्टिलेज कहाँ तक है, उसके अलावा जो है स्मूथ मसल्स हैं और ये इलास्टिक टिश्यू है। तो ये 5 चीजें हैं कि जो आपको पता होनी चाहिए कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती हैं। मैंने जो हिस्टोलॉजी सेक्शन में आपके जो देखे थे उसमें इन्हीं सारी चीजों के साथ जो है वो इर्द गिर्द सारी चीजें जो हैं पूछी गई हैं। वी हैव वही 2 प्राइमरी ब्रोंकस, 3 lobar bronchus on the right and 2 on the left. We have segmental या tertiary bronchus, and we have then terminal bronchioles and respiratory bronchioles. Progressively, airways decrease in size, and cartilage, gland, goblet, and cells, and the height of epithelial cells जो हैं वो सारी के सारी जो हैं वो इनके साथ साथ चेंज होती जाएंगी, और स्मूथ मसल और इलास्टिक टिश्यू जो है वो इंक्रीज होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग लगती है मुझे डायग्राम। होगा क्या, अब यहाँ पे हम देखते हैं, दिस इज कंडक्टिंग डिवीजन। यहाँ तक जो है टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक अगर आप देखो तो यहाँ पे मेरे कर्सर को अगर फॉलो करो तो दिस यहाँ तक जो है कंडक्टिंग जोन है, उससे आगे हमारे पास रेस्पिरेटरी जोन है। तो कंडक्टिंग जोन तक अगर हम एपिथेलियम देखें तो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम जो है वो हमारे सेगमेंटल ब्रोंकस तक होता है। सेगमेंटल ब्रोंकस से आगे जो है वो हमारा सूडो स्ट्रेटिफाइड जो एपिथेलियम है वो चेंज हो जाता है लो कलमनर में, यानी हमारे टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में दिस इज लो कलमनर एपिथेलियम। और फिर वो लो कलमनर जो है हमारे रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स के अंदर क्यूबॉइडल होता है, और फिर उसके बाद एल्वेलर डक्ट से ऑनवर्ड जो है वो सारा का सारा फ्लैटेंड सेल्स हो जाते हैं जो स्क्वेमस सेल्स कहलाते हैं। तो ये चेंज या ट्रांजिशन जो है ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी एपिथेलियम एंड्स एट सेगमेंटल ब्रोंकस, देन टर्मिनल ब्रोंकस कंप्राइजेस ऑफ लो कलमनर, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स जो हैं वो क्यूबॉइडल, और फिर हमारे एल्वेलर डक्ट ऑनवर्ड्स जो हैं स्क्वेमस सेल्स होते हैं या फ्लैट सेल्स होते हैं, जो कि इनर लाइनिंग है हमारे पूरे पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की। गॉबलेट सेल को देखें तो जहां तक मॉइस्ट रखने की जरूरत है दैट इज सेगमेंटल ब्रोंकस, सिर्फ वहां तक गॉबलेट सेल है, उससे आगे जो है वो हमें इस मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। तो कंडक्टिंग पोर्शन में सेगमेंटल ब्रोंकस तक जो है वो गॉबलेट सेल प्रेजेंट होगा। इसी तरीके से हमारे जो और ग्लैंड्स हैं, सीरोम्यूकस ग्लैंड्स हैं, वो भी सिर्फ सेगमेंटल ब्रोंकस के लेवल तक होंगे। हमारा कार्टिलेज जो है that is also present till segmental bronchus। अब होता ये है कि मेन ब्रोंकस में और देन लोबार ब्रोंकस में यहाँ तक तो कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होता है, यानी उसका जो है ल्यूमेन पेटेंट रखने की जरूरत है, बट उससे आगे जो है वो हमारे पास डिस्क आ जाती हैं, कार्टिलेज के जो है ये छोटे छोटे डिस्क आ जाते हैं, और वो भी हमारे सेगमेंटल ब्रोंकस तक जो है वो रहते हैं, उससे आगे जो है वो नहीं होते। उससे आगे जो है वो ल्यूमेन पेटेंट रखने के लिए उसका अपना जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो होता है। तो यानी goblet cell, other glands and hyaline cartilage, they all ended at segmental bronchus level, ठीक है। उसमें से सिर्फ
स्मूथ मसल्स हैं जो हमारे एल्वेलर डक्ट के लेवल तक जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, और इसी तरीके से इलास्टिक फाइबर्स भी। तो इसमें जो है ये चार्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है, जो आपको ट्रांजिशन बताएगा या चेंजेस बताएगा कंडक्टिंग से रेस्पिरेटरी पोर्शन की। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स की तरफ आते हैं कि ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल था और यहाँ से ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल जो है वो स्टार्ट होता है। ये एक बेसिकली ट्रांजिशन जोन है और बिटवीन कंडक्टिंग एंड रेस्पिरेटरी, और यहाँ पे जो है वो क्या है कि दे आर ऑल लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और इसमें जो सेल्स होते हैं जिनका नाम आपने काफी दफा सुना होगा, क्लारा सेल्स कहते हैं उनको। और क्लारा सेल्स जो है वो बेसिकली सर्फेक्टेंट का जो सर्फेक्टेंट जो जरूरी होता है आपके इन सारे एल्वेलर सैक्स को पेटेंट रखने के लिए, तो वो सर्फेक्टेंट जो है वो उसका सेकेंडरी सोर्स जो है, दीज क्लारा सेल्स आर द सेकेंडरी सोर्स ऑफ दिस सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन, वो प्रेजेंट होते हैं इन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। तो इंपॉर्टेंट बात इन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के बारे में यही थी। उसके बाद जो है वो आ जाते हैं क्लारा सेल्स, डोम शेप सेल्स होते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल में होते हैं, ये याद रखना है आपने। और सेकेंडरी सोर्स ऑफ सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन है, और उसके अलावा जो है सीलिएटेड नहीं होते ऑब्वियसली, ये इस पोर्शन तक सीलिया जो है वो खत्म हो जाते हैं। आगे चलते हैं। देन वी हैव एल्वेलर डक्ट्स। एल्वेलर डक्ट्स में जो है ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल था, जिसमें आपको यहाँ पे ये क्लारा सेल्स नजर आ रहे हैं, राइट साइडेड डायग्राम के ऊपर मेरा कर्सर है। आगे जो आए तो एल्वेलर डक्ट्स हैं, दीज आर ओनली अ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ एल्वेलाई, यानी ये सिर्फ एक पैसेज है जिसके अंदर एल्वेलाई जो है ओपन हो रहे हैं, एंड दे एंड एज ब्लाइंड आउट पाउचिंग विच इज कॉल्ड द एल्वेलर सैक, यानी ये एंड इनका जो है वो यहाँ पे हो रहा है ब्लाइंड पॉकेट्स के अंदर। तो एल्वेलर डक्ट इज जस्ट अ पैसेज, उसके अंदर कोई स्पेशल फीचर नहीं है। Then we have important cells, ये इनके बारे में जो है वो आपसे MCQ में पूछा जाता है। We have type 1, ये alveolar sac के अंदर जो है वो आपके कितनी तरह के cells हैं। We have 3 types of cells. We have type 1 pneumocytes, we have type 2 pneumocytes, and we have dust cells. 95% of the alveolar surface जो है उसके ऊपर आपके flattened cells होते हैं, जो squamous cells होते हैं। ये जो है वो फ्लैटेंड सेल्स या स्क्वेमस सेल कहीं भी होंगे तो वो ऑब्वियसली डिफ्यूजन जो है वो उसको फैसिलिटेट करते हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना है, तो वी नीड दीज फ्लैटेंड सेल्स हियर। तो ये है टाइप 1 न्यूमोसाइट्स। देन वी हैव टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। टाइप 2 न्यूमोसाइट्स जो होते हैं दे आर क्यूबॉइडल, थोड़े से जो है वो लार्ज होते हैं, एंड 5% ऑफ द एल्वेलर सरफेस पे होते हैं। और ये इनका जो मेन फंक्शन है, यानी आपने याद ही रखना है कि क्लारा सेल्स आर प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल एंड दे आर द सेकेंडरी सोर्स ऑफ सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन। Type 1 pneumocytes, because they are thin, they form blood-air barrier, and type 2 pneumocytes, cuboidal cells, they are the primary source of surfactant production. ठीक है, तो primary source, secondary source और ब्लड एयर बैरियर, ये 3 सेल्स परफॉर्म कर रहे हैं फंक्शन, तो ये आपको याद रखने हैं। डस्ट सेल्स आर मैक्रोफेजेस, ऑब्वियसली जितना वहां पे जो है वो क्या कहेंगे वेस्ट मटेरियल आया उसको क्लियर करने के लिए वी नीड मैक्रोफेजेस। टाइप 2 न्यूमोसाइट्स, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात सिर्फ ये है कि इन्फेंट्स born before 30 weeks of gestation often are unable to produce sufficient quantities of surfactant, और इस कंडीशन को जो है वो infant respiratory distress syndrome कहते हैं। अब इसमें जो सिनेरियो बेस्ड आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, वो ये पूछा जाता है कि जी पेशेंट ने प्रेजेंट किया एक न्यूबॉर्न बेबी जो है वो 30 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पे जो है वो बॉर्न हुआ, और उसने जो है वो प्रेजेंट किया इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के साथ, तो वो जो है दिस इज अ प्रॉब्लम दैट इज रिलेटेड विद द सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन। तो वो सर्फेक्टेंट जो है वो कौन बना रहा है, या प्राइमरी सोर्स ऑफ सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन इज टाइप 2 न्यूमोसाइट्स, एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन इज क्लारा सेल्स। तो ये इस तरह से पूरा का पूरा एक सिनेरियो बना के जो है वो आपसे पूछा जाता है। तो इसको मैंने मेंशन किया इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को, कि वो इन न्यूमोसाइट्स के साथ एसोसिएटेड है और सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन के साथ एसोसिएटेड है।
ये इंपॉर्टेंट चीज अगेन हमने इसको भी डिस्कस तो किया है। ये है बेसिकली ब्लड एयर बैरियर। हमने जैसे कल किए थे, हमने ब्लड ब्रेन बैरियर किया था, ब्लड नर्व बैरियर किया था, तो अब यहाँ पे हमारे पास आ गया ब्लड एयर बैरियर। ठीक है, टाइम आई थिंक 15 मिनट्स है। तो दिस इज ब्लड एयर बैरियर। ऐसे कोई बताएगा मुझे कि ब्लड ब्रेन बैरियर कौन बना रहा था? कल हमने किया था एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स विद ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, और ब्लड नर्व बैरियर कौन बना रहा था? मेरे ख्याल है नहीं याद किसी को। ब्लड नर्व बैरियर हमने कल डिस्कस किया था। पेरिन्यूक्लियम की लाइनिंग सेल्स हाँ, और पेरीन्यूरियल सेल्स विद कैपिलरीज, जो कि फेसिकल्स या बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स को जो है उसको सराउंड करते हैं। तो पेरीन्यूरियल सेल्स विद एंडोथेलियल सेल्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज जो है, दे फॉर्म द ब्लड नर्व बैरियर। ठीक है, तो आज हमारे पास है ब्लड एयर बैरियर। ठीक है, अब ब्लड एयर बैरियर में अगर हम देखें तो ये एल्वेलाई हैं। इसमें हमने कहा 95% ऑफ द एल्वेलाई जो है दे आर लाइंड बाय द फ्लैटेंड और स्क्वेमस सेल्स व्हिच आर कॉल्ड टाइप 1 न्यूमोसाइट्स। ठीक है, तो ये कैसे बना रहे हैं? ये बेसिकली दिस इज वॉल ऑफ द ब्लड कैपिलरी, ये उसका ल्यूमेन है। तो ब्लड कैपिलरी में जो है वो हमारे पास क्या है? दिस इज कैपिलरी एंडोथेलियम यानी फ्लैटेंड सेल की लेयर और उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, और यहाँ पे हमारे पास दूसरी साइड पे है हमारे एल्वेलर सेल्स या एपिथेलियम और उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये दोनों बेसमेंट मेम्ब्रेन तो फ्यूज हो गई, तो सेल एक्सचेंज जो है वो गैसेस का वो हुआ हमारे इन फ्लैटेंड सेल्स में जो है यहाँ पे। तो ब्लड एयर बैरियर इज फॉर्म्ड बाय एल्वेलर एपिथेलियम एंड कैपिलरी एंडोथेलियम, और इनके दरमियान में उन दोनों का बेसल लैमिना या बेसमेंट मेम्ब्रेन आ जाती है। ठीक है, तो एक साइड पे ब्लड है और दूसरी साइड पे जो है वो इस साइड पे देखिए तो सर्फेक्टेंट है। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा हमारा ब्लड एयर बैरियर। ये कि इट इज अ थिनेस्ट रीजन ऑफ द इंटरएल्वेलर सेप्टम वेयर गैसेस कैन बी एक्सचेंज। तो दिस इज द वॉल, वही चीज जो है वो बताई हुई है कि ये है टाइप 1 एल्वेलर सेल्स, उनका बेसल लैमिना, और ये एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द कैपिलरीज। ठीक है जी, तो हम जो है वो करते हैं जो आपके पास्ट पेपर से ही लिए गए हैं। अब ये तो वही बातें हैं जो मैंने इतनी दफा डिस्कस की हैं, क्योंकि मैंने ये सारे एमसीक्यूज जो हैं वो आपसे डिस्कस किए हैं। अब इसको जल्दी जल्दी जो है वो हम इसको सॉल्व करते हैं। A patient presented to emergency department with a history of inhaling a peanut on bronchoscopy. right lower lobar bronchus. बिल्कुल ठीक, राइट लोअर और लोबार ये ब्रोंकस। हाँ, और ये एमसीक्यू जो है वो इसी तरह से कुछ ना कुछ जो है वो उसमें इनहेल करके बहुत दफा आया हुआ है। The next is pleura is supplied by all of the following nerves except इंटरनल लेरेंजियल। हाँ जी, इंटरनल लैरिंजियल नर्व। हाँ जी ठीक है, इंटरनल लेरेंजियल नर्व। गुड, नेक्स्ट। अब ये सिनेरियो थोड़ा लंबा है, पूछी हुई बहुत छोटी सी बात है बट सिनेरियो बहुत लंबा है। ये कोई पढ़ेगा मेरे लिए? A patient has been brought to the emergency department with a escape wound to the right chest. The physician identifies a wound at the mid-clavicular line in the fifth intercostal space. Which of the following consequences would be most likely in this patient? Cardiac tamponade, chylothorax, decreased paracelsus, harshness, or pneumothorax? हाँ जी, नीमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स। अब ये इसी तरह से जो है वो आपके एमसीक्यूज, बहुत बड़ा सिनेरियो होता है, ये मैंने कल भी डिस्कस किया था, बट उसमें जो है वो आपने की वर्ड या की पॉइंट्स जो है वो आपने पकड़ना होता है, आपको जो है वो उसका आंसर मिल जाता है। ठीक है, अगर आप इसमें कंफ्यूज होंगे कि ये सिम्टम है, ये सिम्टम है, ये सिम्टम है, तो क्या क्या हो सकता है, तो ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करते, पहले सिंपल सोचते हैं, बाद में फिर जो है वो मुश्किल सोचना शुरू करते हैं। देन अगला क्वेश्चन नंबर 4। Ma'am, there are 12. हाँ,
यानी आपके ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट को लेके बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसमें से ये एक क्वेश्चन मैंने वहां से लिया, ई यानी कितने सेगमेंट्स होते हैं? 10 सेगमेंट। राइट साइड पे हमारे 10 सेगमेंट्स होते हैं और लेफ्ट 10 साइड segment पे और 8 8 to 10, लेकिन मोस्टली हम कहते हैं कि 10 सेगमेंट्स जो हैं वो ऑन ईच साइड, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी इतनी दफा पूछा गया है और इसमें जो है वो सिर्फ ऑप्शन को जो है वो समझ लें आप ऊपर नीचे करके और सिनेरियो के साथ वो जो है जी डी न्यूरोवास्कुलर बंडल, ठीक है। लेकिन इसमें इंटरकॉस्टल ना, देखें आप इसका सीक्वेंस जो है वो अपर बॉर्डर, दिस इज टू अवॉइड इंजरी टू। अब इसमें जो है वो हम न्यूरोवास्कुलर बंडल जो है वो तो पूरा है, बट अरेंजमेंट जो कॉस्टल ग्रूव में होती है दैट इज होती है वैन करके हम इसको याद करते हैं। इंटरकॉस्टल वेन, इंटरकॉस्टल आर्टरी और सबसे नीचे इंटरकॉस्टल नर्व होती है, ठीक है। तो हम इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं वैसे कि सबसे नीचे तो इंटरकॉस्टल नर्व थी ना, बाकी दोनों चीजें जो है वो ग्रूव के अंदर सेव्ड होती हैं, ठीक है। वो डैमेज नहीं हो सकती, तो डैमेज हो सकती है इंटरकॉस्टल नर्व उस जगह पे, ठीक है, अगर थोड़ा सा नीडल ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि अगर आप इंटरकॉस्टल स्पेस देखो तो वो भी कोई बहुत बड़ी स्पेस नहीं होती, ठीक है। तो लेकिन ये है कि अगर न्यूरोवास्कुलर बंडल लिखा है तो हम ऑब्वियसली इसको जो है वो कहेंगे कि ठीक है जी, क्योंकि आपके जो बुक ने यही कहा। अब ये एक बहुत बड़ा सिनेरियो है, ये कोई पढ़े और उसके बाद इसका आंसर करते हैं। A 59-year-old man has had cough productive of blood-thin sputum for 8 hours. He has had temperature 102 Fahrenheit, malaise, shortness of breath, and cough productive of yellow phlegm for 2 days. He has smoked 2 packs of cigarette daily for 40 years. Bronchi, wheezes, and egophony are heard over the right hemithorax. An X-ray film of the chest show adhesions lobar infiltrate in the right hemothorax. Select the most likely diagnosis. निमोनिया। हालांकि इसमें पूरे के पूरे जो पहली 4 लाइनें अगर वो ना भी होती, एक्सरे चेस्ट की अगर फाइंडिंग बता देते तो हम उससे भी बता सकते थे। नेक्स्ट, अगेन मैंने ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, क्योंकि आज की हमारी जितनी क्लास थी उसमें जो है वो ज्यादा जो मैंने क्वेश्चंस देखे हैं वो बेसिकली इन्हीं से रिलेटेड जो है वो पूछे गए हैं। तो contains tertiary bronchus. Regarding bronchopulmonary segment, pick the least likely. Pyramidal shape है, apex toward the lung है, vein Contains lie tertiary bronchus. Tertiary bronchus. Vein lie in this segment. क्योंकि बाकी सारे जो हैं वो ठीक हैं, आपने least likely। तो वेन्स लाई इन द सेगमेंट, मैंने आपको जब मैंने ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट का स्ट्रक्चर बताया है तो मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि आपके जो ये वाले क्वेश्चंस हैं जो इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं वो कभी कह देते हैं कि वेन्स जो है दैट अकम्पनीज द आर्टरी, या वेन्स जो है दैट लाई इन द सेगमेंट। मतलब ये सारी की सारी चीजों को जो है वो उनके स्ट्रक्चर के लिहाज से देखते हैं। तो आपने याद रखना है कि वेन और पल्मोनरी वेन ऑलवेज लाई ऑन द कनेक्टिव टिश्यू और साइड्स ऑफ द ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट में होगी, विद इन द ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट नहीं होगी, ठीक है, वो होगी। और अंदर उसके जो है वो ब्रोंकस होगा, ठीक है, जो हमें ये बता रहा है कि कंटेन टर्शरी ब्रोंकस, जिसको हम सेगमेंटल ब्रोंकस कहते हैं। इंडिपेंडेंट रेस्पिरेटरी यूनिट है ये, और उसके साथ साथ उसके जो है पल्मोनरी आर्टरी आ रही थी और हर एल्वेलाई के ऊपर जो है वो उसका प्लेक्सस पड़ा हुआ था, कैपिलरी प्लेक्सस, और वहां पे एक्सचेंज हो रहा था, ठीक है। और उसके साथ हमने कहा था उसके साथ आते हैं हमारे नर्व्स आती हैं, और उसके साथ यानी विद इन द ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, तो वी हैव सेगमेंटल ब्रोंकस, वी हैव पल्मोनरी आर्टरी, वी हैव नर्व्स एंड वी हैव लिम्फेटिक्स, जो कि इनसाइड द ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स हैं। वेन्स जो हैं वो आउटसाइड है। अगला करें। Yes, ma'am. हाँ जी, ड्यूरिंग एन इंसर्शन ऑफ ट्रैकियोस्टमी ट्यूब द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली टू बी फाउंड। अब इसमें ये कुछ फैक्ट्स बताए हुए हैं सारे के सारे, ठीक है।
और इन फैक्ट्स के साथ जो है आप लास्ट ऑप्शन पढ़ो। ट्रेकियालिस इन द लाइन ऑफ In the इंसिजन। line of हाँ, तो ट्रेकियालिस जो है वो, हाँ बिल्कुल, तो ट्रेकियालिस जो है वो कहाँ था? जो सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग ऑफ द ट्रेकिया है, मैंने बताया था कि उसमें पोस्टीरियरली जो ये सी बनता है ना, तो वो गैप जो है दैट इज फिल्ड बाय दिस ट्रेकियालिस मसल। ठीक है, तो वहां तक तो हम पहुंच ही नहीं रहे जी मैम। क्योंकि वो पोस्टीरियरली है, हम तो एंटीरियरली करते हैं ना ट्रेकियोस्टमी लॉजिकली। मैम 8 का आंसर क्या होगा? इसका E option. ट्रेकियालिस। ऑप्शन ट्रेकियालिस, सॉरी। थैंक यू। अब the part of the bronchial tree devoid of cartilage। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियो। respiratory ठीक है। bronchioles, हाँ, क्योंकि कार्टिलेज जो है वो हमने कहाँ तक किया? सेगमेंटल ब्रोंकस तक। हाँ, वहां तक कार्टिलेज है। नेक्स्ट लास्ट है शायद ये, रिगार्डिंग द हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ लंग व्हिच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब इसको पढ़ें जरा और फिर बताएं। मैम सी। सी Type 1 pneumocyte secretes surfactant. टाइप 2 pneumocyte। हाँ, तो type 1 कौन से pneumocyte, न्यूमोसाइट्स करते हैं? हमारा प्राइमरी type 2 pneumocyte, टाइप 2। टाइप 2 इज द प्राइमरी सोर्स। अगर आपको ये बातें इक्का दुक्का याद रह जाए तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी कि मैंने Carrera शायद। cells is the secondary source. हाँ जी, ठीक है। Very well Primary मैम is the मतलब कि type 1, FCPS टाइप 2। पेपर में भी ये क्वेश्चंस आए ना, तो चले, मुझे याद कर लेना। अच्छा जी, टाइप 2 प्राइमरी सोर्स ऑफ सर्फेक्टेंट and Clara cell are the secondary source of surfactant. Clara cells are present in the respiratory bronchioles और type 2 जो है वो alveolar wall में। और type 1 pneumocytes क्या बनाते हैं? जल्दी से। blood air barrier। ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, हमारी 3 क्लासेस हुई हैं साथ Thank you, में। ma'am.